Yes, prayer. प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन भरे परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्व है। गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के निगलेव के, सधर्म के सत्कर्म के। ऊंची है झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईश्वर, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताव कर हम वीर हो, अति वीर हो। उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत खंभीर हो। अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा। आध्यात्म की शक्ति हमें पल में नहीं करने जुदा। इस अमर आत्मा में हर श्वास भर में गम रहे। गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। Thank you all. So today our speakers Aman Goyal, Rishabh Jain and Priyanshi Jain. All these three young speakers uh, probably will be speaking for the first time on the very complex topic of embedded derivatives, reclassifications of financial instruments, and impairment methodology. On these three topics, they will be speaking today. Uh, our class is basically in continuation of our earlier three classes, which were held on the financial instruments taken by the other speakers. What I have seen is their presentation, and they have really come out with a very good presentation, as well as probably for last 2 or 3 weeks they are preparing on the financial instruments, and every week the class is postponed. So, again they have to prepare on the same subject. So I'm sure that they had got good time to prepare on this particular subject. And with these words, in fact, I directly hand over this class to all our young speakers. And wherever required, I will be speaking. I am sure that they will be explaining you everything in detail. And after the class, as you all are aware, there is a quiz. So whatever you want to ask during the class, you can ask. And of course, because of your physical presence over here, I believe that class will be interactive. And not only that, those who are virtually connected in this class, virtually participating in this class,
should also join, should also interact, or wherever they have the queries, they should actually ask from the speakers. So over to you all. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. कैसे हैं आप सब? Hope everyone is good and doing well. So today I Aman with Rishabh and Priyanshi presenting today's Saturday class. Rishabh was actually not well. Still, he has managed to come. Yes. Because I have not given any leave to him. So our topic is embedded derivative, reclassification, and impairment methodology. We have previously we have three classes on the financial instruments. So let's have a small recap on that. Financial instrument is any contract that gives rise. That is very important. That this recap you should know that what we have discussed earlier, so that until and unless you are not able to connect it with your earlier class, maybe that this class you will not be able to understand. So please hear this recap carefully. As you all know, financial instrument is any contract that give rise to financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity. So financial instrument के लिए जरूरी है कि एक पार्टी के लिए वो financial asset हो और दूसरे के लिए वो या तो financial liability हो या फिर equity हो. जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं लोन्स का. अगर एक लोन गिवन किसी की बैलेंस शीट में आ रहा है तो एक पार्टी के लिए एसेट भी है और लाइबिलिटी सामने वाले के लिए लाइबिलिटी भी है. बट अगर अपन पीपीई का एग्जांपल लें तो पीपीई अपने लिए एसेट तो है बट वो किसी के लिए लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में मीट नहीं करता है. उसके बाद आपने पढ़ा होगा फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड करता है कैश, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, फाइनेंशियल एसेट, or contractual right to exchange financial asset or financial liability under a potentially favorable conditions. And if contract is settled in own equity instrument of the entity, then if the contract is non-derivative, then the contract is settled in variable number of shares, then it is a financial asset. And if the contract is derivative, then it is, if it is fixed in the, it is settled in fixed number of shares, then it is financial asset. So similarly इसका opposite कर देंगे तो liability बनता है. तो contractual obligation to deliver cash or another financial asset, same contractual obligation to exchange financial asset or financial liability under potential unfavorable conditions, or same in if contract is settled in own equity instruments, then non-derivative contract में अपना वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर्स में अगर आप डिलीवर करते हो तो ही वो फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी बनेगा, और अगर डेरिवेटिव है तो फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स में. उसके बाद आपने इक्विटी पढ़ा होगा. इक्विटी में रेसिडुअल इंटरेस्ट, इसमें आपको कोई कैश या फाइनेंशियल एसेट डिलीवर नहीं करना होता है, जबकि इसके क्लासिफिकेशन के लिए आपने फिक्स्ड टू फिक्स्ड टैक्स भी पढ़ा होगा, जो कि अगर आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश में फिक्स्ड अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहे हैं तो ही वो इक्विटी क्लासिफाई होगा. उसके बाद आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, एसीएम, एफईटीपीएल एंड एफवीओसीआई. इसके लिए दो टेस्ट भी पढ़े थे, एसपीपीआई और बीएमटी, जो कि आपको याद हो. एसपीपीआई सोनली तो ये क्लासिफिकेशन को भी कौन एक्सप्लेन करेगा? पहले अपन ने पढ़ा हुआ है और बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है. यस, हाँ, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट ये लिखा हुआ ना इधर, उसी को एक्सप्लेन करना है. सर ओसीआई तो इनकम होती है जो पीएनएल में शो करते हैं. नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं. वी विल एक्सप्लेन. काफी डिटेल में पढ़ा था हैं? तू बता दे, तेरे को क्या अलग से निमंत्रण दूं मैं? तीन मॉडल होते हैं, बीएम होल्ड और बीएम होल्डर सेल और सेल. अगर एसपीपीआई टेस्ट भी होता है तो सोनली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के लिए अपन उसको एसीएम एमोर्टाइज कॉस्ट मेथड से अकाउंट फॉर करेंगे. और अगर अपन होल्ड और सेल में मतलब अगर अच्छा आगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अपन बेच भी सकते हैं, तो फिर अपन उसको फेयर वैल्यू और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में डालेंगे. और अगर अपना ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, जैसे अपने को सिर्फ वैल्यूएशन गेन चाहिए किसी स्टॉक पे, तो अपन एफईटीपीएल पे उसको मेजर करेंगे और उसको रिक्लासिफाई करेंगे. ये होता है. Yes, I think summarily he has explained well कि ये क्लासिफिकेशन कौन सी सिचुएशन में क्या क्लासिफिकेशन होना चाहिए, एंड दैट्स इम्पोर्टेंट. क्योंकि अगर आपने ये, आई एम श्योर जब उस वक्त पढ़ा होगा तो आपने इसको सीखा होगा, बट अभी अचानक से मैंने पूछ लिया तो प्रोबेबली यू मे नॉट, सम ऑफ यू मे नॉट बी एबल टू आंसर. और कुछ लोग आप में से हेजिटेट भी करते हैं कि यार पता नहीं अभी कुछ गलत बोल जाएंगे, जैसे ये भी कर रहा था. बट ही हैज राइटली answered in a summarized manner.
सो क्लासिफिकेशन के लिए अपना पहला फिल्टर होता है SPPI टेस्ट। इफ SPPI टेस्ट मीट होता है तो अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे वैल्यू कर सकते हैं या फिर FVTOCI पे, FVTPL पे नहीं जाएंगे। और दूसरा फिल्टर होता है BMT टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट। अगर अपना बिजनेस मॉडल सिर्फ होल्ड है तो फिर अपन अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करेंगे। और अगर अपना SPPI टेस्ट मीट हो रहा है और अपना बिजनेस मॉडल होल्ड और सेल है तो अपन FVTOCI पे करेंगे। FVTPL अपना डिफॉल्ट क्राइटेरिया होता है, अगर दोनों में फेल नहीं होता तो अपना FVTPL में फॉल होगा। और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के लिए स्पेशली अमोर्टाइज कॉस्ट पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं होता है, और FVTOCI पे भी अगर वो मेजर होता है तो उस पे भी इर्रिवोकेबल चॉइस होती है। एक बार अगर आपने मेजर कर दिया तो आप उसको P&L में रिक्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको उसका गेन सीधा रिजर्व में जाएगा। ये आपने पढ़ा था अब तक। तो अपन अब आते हैं व्हाट इज डेरिवेटिव्स। अपन एम्बेडेड डेरिवेटिव पढ़ने के लिए थोड़ा सा डेरिवेटिव का एक व्यू लेंगे क्योंकि जरूरी है, जो आपको अगर नहीं तो एम्बेडेड डेरिवेटिव समझ नहीं आएगा। डेरिवेटिव मैं आपको बता सकता है कि नॉर्मली डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव्स कौन बताएगा? कुछ तो आपने डेरिवेटिव्स के बारे में सुना होगा या कोई डेरिवेटिव्स में काम करता होगा। करता कोई काम डेरिवेटिव्स में? क्या? हाँ बता दे सर। डेरिवेटिव्स एक तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फ्यूचर डेट पे अपन एक्सरसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स हैं, अपन ने पहली क्लास में, पहली मतलब वो फर्स्ट नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की पहली क्लास में वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट आर डेरिवेटिव्स। हाँ, और उसके अंदर सर रिस्क एक अटैच होता है, एक अपने yes there is some underlying items अंडरलाइन है ना, और कोई फ्यूचर के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग इवेंट पे जो डिपेंड करता है ना, वेयर फ्रॉम दैट इज डिराइव्ड। सो लेमन एग्जांपल में आप ये बोल सकते हो। नाउ वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल। तो डेरिवेटिव को एक शब्द में बोला जाए तो एक तरह से शर्त, या फिर और ज्यादा स्पेसिफिकली तो सट्टा, यही होता है। अब जैसे अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है कि किसी चीज के लिए आपका फ्यूचर इवेंट्स को स्ट्रॉन्ग बिलीफ आ रहा है और आपका फ्रेंड बोलता है उसी का अपोजिट, तो आप एक तरह से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो और उस पर कोई प्राइस भी रख सकते हो। अब आप सबने उम्मीद की थी कि अपन कल मैच देखेंगे, बट वो हो नहीं पाया, तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि कल का मैच का तो तू बोले मत। अपन एग्जांपल लेते हैं, जब भी नेक्स्ट मैच होगा तो सपोज आपको बिलीव आ रहा है कि कोहली सेंचुरी लगाएगा सपोज, और आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं वो तो बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो आप दोनों एक डेरिवेटिव में एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो कि अगर वो सेंचुरी लगाएगा तो आपका फ्रेंड आपको 100 रुपए देगा, और अगर वो सेंचुरी नहीं लगाता तो आप उसे 100 रुपए दोगे। तो इसको अगर अपन एनालिसिस करें तो यहाँ पे जो विराट कोहली है वो क्या है, एक अंडरलाइंग है, उसकी परफॉर्मेंस आपके लिए एक अंडरलाइंग है कि अगर उसका सेंचुरी लगाना है ना लगाना आपके कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करेगा। दूसरा, आपने अभी कोई पैसा दिया है, अभी कोई पैसा नहीं दिया, पैसा आप सिर्फ तभी दोगे जब या तो वो आउट हो जाएगा या फिर सेंचुरी लगा देगा, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 0 होता है। दूसरा, ये सेटल भी तभी होगा जब वो या तो आउट हो जाएगा या फिर वो सेंचुरी लगा देगा, तो ये एक फ्यूचर डेट पे सेटल होता है। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन भी यही बोलती है, डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद नो और नॉमिनल इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड द वैल्यू ऑफ व्हिच इज डेराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एंड टू बी सेटल एट अ फ्यूचर डेट। नाउ अपन इसको थोड़ा सा एनालिसिस करें इस डेफिनेशन को, तो इन्वेस्टमेंट, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट निल होता है या फिर बहुत इमटेरियल होता है सिग्निफिकेंटली। सपोज किसी में अपन को मार्जिन मनी देनी पड़ सकती है, बट अगर ऐसा अगर बहुत मटेरियल अमाउंट है तो फिर वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। दूसरा, वैल्यू ऑफ व्हिच इज डेराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग। अब यहाँ पे अंडरलाइंग वेरिएबल नेचर का होना चाहिए, मींस वो चेंजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई फिक्स अंडरलाइंग हो, जैसे विराट कोहली की परफॉर्मेंस यहाँ पे चेंजिंग नेचर की, वो कभी 0 भी बना सकता है, कभी 100 भी बना सकता है। दूसरा है जो अंडरलाइंग है वो अगर नॉन फाइनेंशियल आइटम है तो फिर वो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। आप सीधे विराट कोहली से जाके सेंचुरी शर्त लगा सकते हैं कि वो सेंचुरी लगाएगा ही नहीं लगाएगा, क्योंकि वो चाहे तो 99 पे भी आउट हो सकता है। तो सेम ऐसे एंटिटी स्पेसिफिक नहीं लगा सकते कि सपोज एंटिटी एक्स है, अब उससे कोई शर्त लगा ले कि आपकी इन्वेंट्री में 1 महीने में डैमेज हो जाएगी, अब वो तो खुद डैमेज भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर नॉन फाइनेंशियल आइटम है तो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। अगर फाइनेंशियल आइटम है तो एंटिटी स्पेसिफिक हो से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी भी एंटिटी के लिए उसकी शेयर प्राइस उसके कंट्रोल में नहीं होती है, वो उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। नाउ अगर अपन अंडरलाइंग के एग्जांपल लें, तो अगर इंटरेस्ट रेट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपका इंटरेस्ट रेट का इंडेक्स आपका अंडरलाइंग होगा। अगर कमोडिटी फॉरवर्ड है तो कमोडिटी प्राइसेस, जैसे इक्विटी स्वैप है तो इक्विटी प्राइसेस, अगर कॉल और पुट ऑप्शंस है तो करेंसी रेट्स। अब इसमें एक जरूरी चीज है कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेट पे ही सेटल होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं है कि वो नेट में हो या ग्रॉस में हो, कैसे भी सेटल हो सकता है। सपोज इंटरेस्ट रेट स्वैप, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें आप एक दूसरे को, आपको सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आपको फिक्स रेट से पेमेंट करना है 8% से, और सामने वाला आपको मार्केट रेट से पेमेंट करना है। तो आप चाहो तो सपोज फ्यूचर में 10% इंटरेस्ट रेट है तो आप चाहो तो 2% का नेट सेटलमेंट कर लो, या फिर आपको 8% के उसके इसको मनी पे कर दो और वो आपको 10% से कर देगा। तो इसमें जरूरी है फ्यूचर डेट पे हो।
नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. Silver Limited had purchased 100 ounce of gold on 10th March. Transaction provides for a price payable which is equal to market value of 100 ounce of gold on 10th April and shall be settled by issue of such number of equity shares as is required to settle aforementioned transaction price at rupees 10 per share. Now अगर अपन इसको एनालिसिस करें तो जो गोल्ड की प्राइस एक चेंजिंग वैल्यू है, तो ये आपके लिए अंडरलाइन हो गया. और दूसरा, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने कोई पेमेंट नहीं किया और आप ये फ्यूचर डेट पे सेटल होने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो एक तरह से ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है. अब इसका अपन क्लासिफिकेशन देखें तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग में ही क्लासिफाई होते हैं, इसीलिए इसको एफबीटीपीएल के थ्रू ही मेजर किया जाता है. जो भी गेन लॉस होगा आपका रिपोर्टिंग डेट पे वो आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के थ्रू ही रिकॉग्नाइज करोगे. उसके बाद अगर इसका एक अपन एग्जांपल देखें कि सपोज एबीसी लिमिटेड एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय 100 टन्स ऑफ कोकोआ बीन्स एट 1000 पर टन. एबीसी लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ कि वो कोकोआ बीन्स करेगा, 1000 प्राइस फिक्स हो चुकी है 12 मंथ्स में, पर अब सेटलमेंट डेट पे सपोज प्राइस 1500 हो गई. आपने पिछले क्लास में ऑन यूज एग्जम्पशन पढ़ा है. अगर यहाँ पे ये जो एंटिटी है उसका इंटेंशन है कि वो अपने ओन रिक्वायरमेंट के लिए कर रही है और उसका डिलीवरी लेगी, तो वो सिंपल एज ए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इसको क्लासिफाई कर सकती है. बट अगर केस 2 देखिए अपन, तो इसमें अगर आपका इंटेंशन है कि आप इसको नेट में सेटल करोगे कि सपोज अभी प्राइस 1000 है और सेटलमेंट डेट पे 1500 हो गई, तो आप 5000 का डिफरेंस क्लासिफाई करोगे तो आपको ये फेयर वैल्यू गेन हो गया 500, तो आप इसको पीएनएल के थ्रू अकाउंट फॉर कर सकते हो. इसी तरह से अब अपन आते हैं एम्बेडेड डेरिवेटिव. अपन ने डेरिवेटिव तो पढ़ लिया है, अब एम्बेडेड डेरिवेटिव के एम्बेडेड का मतलब समझना है. एम्बेडेड मतलब अटैच्ड. अगर आप एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को लो, एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लो और उन दोनों को मिला दो तो एक एम्बेडेड डेरिवेटिव बनता है. अपन एक सिंपल से एग्जांपल से लेते हैं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को बॉन्ड इशू किया. ये सिंपल एक एम्बेडेड एक सिंपल नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है. बट अगर इसमें जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का पेमेंट होना है वो उसने गोल्ड की प्राइस से लिंक कर दिया, तब क्या होगा? तो अब इसमें नॉर्मल मार्केट रेट से इंटरेस्ट लिया जाए तो 10%, सपोज 10% मार्केट रेट का इंटरेस्ट है. अब गोल्ड की प्राइस उस टाइम पे बहुत हाई चली गई या बहुत लो चली गई तो आपको लॉस गेन होगा. तो इसमें आपने एक सिंपल ना चाहे एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड कर दिया, इसीलिए ये एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट हो गया. तो इसको आपको दो पार्ट में क्लासिफाई करना होगा. जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो हो गया आपका नॉन डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट, और जो गोल्ड प्राइस से जो आपका पेमेंट लिंक है वो हो गया एम्बेडेड डेरिवेटिव. सेम इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हो. सपोज डिबेंचर्स हैं, उसमें आपने कन्वर्जन का ऑप्शन दे दिया या फिर आपने उसका जो डिबेंचर का रेट है वो इक्विटी से लिंक कर दिया. तो इस तरह से इसमें आप नॉन डेरिवेटिव होस्ट कॉन्ट्रैक्ट और एम्बेडेड डेरिवेटिव को आपको अलग अलग करना होगा. ये बेसिकली एक हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट होता है. इस इमेज में आप जैसे देख सकते हो, ये जो बाहर का पोर्शन है वो एक नॉन डेरिवेटिव है और जो अंदर का पोर्शन है वो उसमें एक डेरिवेटिव आपने इंक्लूड कर दिया जो कि एक फॉरेक्स रेट, फॉरवर्ड, इन्फ्लेशन, किसी भी फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है. उसके बाद अब जो इंडेक्स डिफाइन करता है उसकी इतनी बड़ी डेफिनेशन है, आप चाहो इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं. बेसिकली एम्बेडेड डेरिवेटिव में यही होता है. एम्बेडेड डेरिवेटिव इज अ कंपोनेंट ऑफ हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट. इसमें हाइब्रिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक नॉन डेरिवेटिव होस्ट इंक्लूड करता है विद द इफेक्ट दैट सम ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ combined instrument vary in a way similar to a standalone derivative. This an embedded derivative causes some or all of the cash flows that otherwise would be required by the contract to be modified according to a specified interest rate, financial instrument price, commodity price, foreign exchange rate, index of price rates, credit rating, credit index, or other variable, provided in the case of non-financial variable that the variable is not specific to a party to the contract. वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर नॉन फाइनेंशियल है तो एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए और इसकी वजह से आपके जो चेंज इन कैश फ्लोज मॉडिफिकेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसमें जो कैश फ्लोज आते हैं और उससे जो अगर आप डेरिवेटिव्स में इंक्लूड कर रहे हो उससे जो कैश फ्लो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंटली चेंज हो है तो एम्बेडेड डेरिवेटिव अकाउंटिंग अप्लाई होगी. तो उसी तरह से मैंने एग्जांपल ले तो सिंपल मैंने आपको वैसे काफी एग्जांपल बता दिए बट एक दो और देख सकते हैं. कंपनी एमएनएल लिमिटेड होल्ड्स अ बॉन्ड व्हिच इज कन्वर्टिबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ कंपनी. अब बॉन्ड है उस पे आप इंटरेस्ट पेमेंट कर सकते हो बट आपका जो कन्वर्जन का ऑप्शन है ये आपका एम्बेड कर दिया इन्होंने जो कि डेरिवेटिव पोर्शन है, तो ये हो गया एम्बेडेड डेरिवेटिव. सेम कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड सेल्स फर्नीचर टू अ कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड इन यूएसडी. बोथ कंपनीज आर लोकेटेड इन इंडिया. अब दो कंपनी इंडिया में लोकेटेड है तो वो रुपीस में ट्रांजेक्शन कर सकती है बट अब वो जानबूझ के चाहती है कि वो यूएसडी में ट्रांजेक्शन करें जबकि ये उनकी फंक्शनल करेंसी भी नहीं है. तो फिर ये उनके लिए जो फॉरेन एक्सचेंज का जो चेंज होगा वो एम्बेडेड पोर्शन हो गया. अब एम्बेडेड के लिए एम्बेडेड डेरिवेटिव आपने पहचान लिया कि एम्बेडेड डेरिवेटिव क्या होता है. अब उनको आप सेपरेट कब करोगे? नॉन डेरिवेटिव को अलग किया और एम्बेडेड को अलग किया. तो उसके लिए 3 कंडीशंस है कि अगर आपकी इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक जो एम्बेडेड पोर्शन है और नॉन डेरिवेटिव होस्ट है उन दोनों की इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल सिमिलर है तो आपको उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा है कि आपका अगर डेरिवेटिव जो उसमें पोर्शन है अगर आप उसको सेपरेट इंस्ट्रूमेंट को सेम टर्म के साथ वो डेरिवेटिव की डेफिनेशन मीट करना चाहिए. तीसरा, अगर वो एफईटीपीएल पे मेजर हो रहा है तो अपन को इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एफईटीपीएल पे ही डेरिवेटिव पोर्शन मेजर होगा. तो जब पर अगर नॉन डेरिवेटिव एफईटीपीएल पे मेजर हो रहा है तो आप उसको अलग अलग करने से कोई मतलब नहीं है, आप पूरे को एफईटीपीएल पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नाउ एक
अगर सेपरेशन के लिए एक ये अपन कंडीशंस देख सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा धीरे एक्सप्लेन करो सर, ठीक है? वो बुलेट ट्रेन चल रही है, सॉरी सर। तो पीछे कई लोगों को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो समझ आ रहा है, मैं बिल्कुल पास बैठा हूँ। अब सेपरेशन ऑफ एम्बेडेड डेरिवेटिव फ्रॉम होस्ट कॉन्ट्रैक्ट अपन देखेंगे। इसमें सबसे पहले होस्ट कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो एम्बेडेड डेरिवेटिव अकाउंटिंग नहीं रहेगी, अगर नहीं है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या होस्ट कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एसेट है। और फाइनेंशियल एसेट में अपन इसीलिए चेंज नहीं करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल एसेट तभी एसीएम और एफपीटीपीआई पे मेजर होता है जब वो एसपीपीआई टेस्ट मीट करता हो, और एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं करेगा अगर उसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव का पोर्शन है। तो इसीलिए फाइनेंशियल एसेट हमेशा एफपीटीपीएल पे क्लासिफाई होगा, तो ये उसके लिए अपन को इसमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। तो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो, और उसके बाद होस्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है और वो एफपीटीपीएल पे अकाउंट फॉर रहा है तो भी अपन को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, तो वो भी अपन इसमें फिल्टर कर देंगे। उसके बाद अपन देखेंगे कि इसमें जो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिस्क है वो सिमिलर है होस्ट कॉन्ट्रैक्ट की। अगर सिमिलर है तो फिर अपन उसको पूरे वो एफपीटीपीएल पे अकाउंट फॉर कर सकते हैं, अगर सिमिलर नहीं है तो अपन इसको सेपरेट करेंगे। और जो डेरिवेटिव है वो उससे सिग्निफिकेंट कैश फ्लो चेंज हो रहे हैं। अगर सपोज डेरिवेटिव की वजह से सिग्निफिकेंट कैश फ्लो इमटेरियल अमाउंट पड़ेगा आपके फाइनेंशियल में, तो आपको इसको अलग से बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा भी आपको जो डेरिवेटिव पोर्शन है उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करना जरूरी है। अगर आपको नॉन डेरिवेटिव होस्ट की नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की फेयर वैल्यू पता है और टोटल इंस्ट्रूमेंट की पता है, तो टोटल इंस्ट्रूमेंट माइनस नॉन डेरिवेटिव करोगे तो आपकी डेरिवेटिव पोर्शन क्या जाएगी, बट फेयर वैल्यू होगी तो ही आप अकाउंटिंग कर पाओगे। अगर ये सब कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप स्प्लिट अकाउंटिंग लगाओगे। अब अपन एक एग्जांपल देखते हैं दोनों इन्वेस्टर और बोरोवर के पर्सपेक्टिव से। सपोज कोई बॉन्ड है जिसका जो कि इक्विटी मार्केट इंडेक्स के हिसाब से पेमेंट करता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का, तो इन्वेस्टर के पोर्शन से देखो तो वो उसके लिए फाइनेंशियल असेट हो गया जो कि एसपीपीआई टेस्ट मीट नहीं करता है, तो वो तो सीधा एफटीपीएल में अकाउंट फॉर कर देगा। बोरोवर के पोर्शन से देखो तो जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो लोन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसमें कि एक स्पेकुलेटिव एलिमेंट इंक्लूड है जो कि इंटरेस्ट, जो कि इक्विटी से उसकी प्राइस चेंज होती है, तो इसीलिए ये और एक फ्यूचर डेट पे सेटल होगा, तो ये डेरिवेटिव की अकाउंटिंग डेफिनेशन मीट करता है। सो अपन इसको स्प्लिट करके अकाउंट फॉर करेंगे। अब स्प्लिट करने के लिए आप पहले तो फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए। डिटरमाइन करने के बाद आपका जो होस्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या फिर नॉन फाइनेंशियल आइटम होगा। जो फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो आप उसको एसीएम पे अकाउंट फॉर कर दीजिए, और अगर नॉन फाइनेंशियल आइटम है तो आप उसको इस पर रेस्पेक्टिव एंड अकाउंट फॉर कर दीजिए। और जो अगर डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो एफपीटीपीएल पे ही मेजर होता है, आपने उसके अलावा और किसी में मेजर नहीं हो सकता। नाउ ऋषभ विल टेक ऑन रिक्लासिफिकेशन। अभी क्या समझ में आया एम्बेडेड डेरिवेटिव्स? नवीन गर्ग। यस सर। हाँ नवीन जी, आपको समझ में आया इन्होंने जो एक्सप्लेन किया? यस सर। तो अभी आप मुझे डेरिवेटिव और एम्बेडेड डेरिवेटिव इनको सरल शब्दों में समझाइए। सर डेरिवेटिव में तो अपना होता है फ्यूचर में अपन ने ऐसे कोई अपन ने एग्जांपल लेके समझाया था ना विराट कोहली वाला कि फ्यूचर में खेलेंगे तो 100 रन बनाएगा, सेंचुरी बनाएगा, और या फिर 0 रन आउट होगा तो 100 रुपए या फिर विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। अभी आप कुछ दूसरा एग्जांपल बताओ, ये तो इजी नहीं बता दिया। अच्छा सर, जैसे डेरिवेटिव में मैंने ऑप्शन लगाया था कि कल इस शेयर की प्राइस इतनी रुपए हो जाएगी। सपोज कि टीसीएस की प्राइस पे ऑप्शन लगाया कि 2 दिन बाद इसकी प्राइस 100 होगी, और किसी और ने लगाया कि मैंने इसके साथ की प्राइस 50 होगी, तो जो जीतेगा उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या डेरिवेटिव यदि कंडीशन मेट हो गई, एक के लिए देने पड़ जाएगी, एक को लॉस होगा एक को गेन होगा, तो वो एपीटीएल पे मेजर करेंगे। और एक होता है एम्बेडेड डेरिवेटिव में अपन ने कोई एक नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव को दोनों मर्ज करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो होता है एम्बेडेड डेरिवेटिव। सपोज में एम्बेडेड डेरिवेटिव में कोई अपन ने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लगाया जो कि अपना डेरिवेटिव नहीं है, जैसे उसमें अपन ने सेल के साथ लगा दी, किसी के साथ प्राइस के साथ फिक्सिंग कर दिया, जैसे इसकी प्राइस डिपेंड करती है किसी और के प्राइस के ऊपर, तो वो अपना एम्बेडेड डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है, you can now continue. Reclassification entity shall reclassify its financial assets only when there is a change in the business model of an entity
for those this ये is managing the रिक्लासिफिकेशन वर्ड से क्या समझ में आया, मतलब क्या समझ में आया आपको? ये अभी रिक्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या डिस्कस करेंगे? आपने कुछ सोचा? मतलब पहले जो क्लासिफिकेशन चल रहा था उसकी जगह क्या हम फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज को किसी और क्लासिफिकेशन में लेकर के जा सकते हैं क्या, है ना? कोई अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड पे हम किसी एसेट को क्लासिफाई, लायबिलिटी को क्लासिफाई कर रहे थे, तो क्या हम उसको एफईटीपीएल लेके जा सकते हैं? क्या हम उसको एफईटी ओसीआई लेके जा सकते हैं? तो ये सारे प्रिंसिपल ये डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी सिचुएशन में आप रिक्लासिफिकेशन कर सकते हो, है ना? और क्या ये रिक्लासिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हो, या उसके लिए कुछ प्रिंसिपल है, या साल भर में एक ही बार कर सकते हो, है ना? और जब रिक्लासिफिकेशन होगा तो उसका जो रिक्लासिफिकेशन की वजह से नेक्स्ट वैल्यू आएगा उसका क्या करेंगे? क्या प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, या उसको डायरेक्ट इक्विटी में लेके चले जाएंगे, अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? तो ये सारी चीजें आपके साथ में ऋषभ डिस्कस करेगा। reclassification is only थोड़ा permitted धीरे डिस्कस करो ताकि इन सबको थोड़ा समझ में भी आए। only permitted when there is a change in a business model. Change in a intention is not a reclassification, is not a reclassification, not a change in business model. For an example, if an entity ceases or acquires a new business which significantly affect its operation, is a changes in a business model. If entity wants to reclassify any of its financial assets, it must do prospective from the reclassification of from reclassification date. Financial liability is not permitted to reclassify, and equity instrument is also if अगर अपन ने FVOCI पे ले लिया तो वो इररिवोकेबल चॉइस है अपनी, तो फिर उसको अपन और अगर अपन चाहे FVTPL पे करे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को तो अपन वो नहीं कर सकते. और अगर if a change in objective and entity business model must be effect before the reclassification date. बिजनेस मॉडल जो भी एंटिटी चेंज करना चाहती है वो रिक्लासिफिकेशन डेट से पहले ही उसको डिसाइड करना पड़ेगा. अब अपन ये देखते हैं एग्जिस्टिंग मेथड अपना है ACM, अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल, और अपन अब इसको रिक्लासिफाई करना चाहते हैं FVTPL. वैल्यू देंगे फेयर वैल्यू पे, क्योंकि अपन अमोर्टाइज कॉस्ट कैरिंग अमाउंट पे अपन शो करते थे. तो जो भी अपना फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का जो भी डिफरेंस है वो अपन जैसे अपन FVTPL पे मेजर कर रहे हैं, तो वो जो भी डिफरेंस आएगा गेन या लॉस वो अपन P&L में ट्रांसफर कर देंगे. और जो कूपन रेट होगी उससे अपन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट होगी वो फ्यूचर में रखेंगे. इससे क्या वही रिक्लासिफिकेशन जब भी चेंज इन बिजनेस मॉडल होगा जब भी अपन रिक्लासिफिकेशन करेंगे, और एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर ही होगा रिक्लासिफिकेशन. एग्जांपल, बॉन्ड फॉर द रुपीज 1 लाख रिक्लासिफाइड एज FVTPL. The fair value of reclassification is 90,000. So basically the fair value of reclassification of the assets 90,000. तो अपन बुक्स में इसको 90,000 पे रिकॉर्ड कर देंगे. तो जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को जो भी डिफरेंस है वो अपन जैसे अपन इसको रिक्लासिफाई करें FVTPL पे, तो वो जो डिफरेंस है गेन और लॉस का वो अपन P&L में ट्रांसफर कर देंगे. तो अपनी एंट्री हो जाएगी बॉन्ड एट FVTPL 90,000 से जो अपनी फेयर वैल्यू है, और जो अपना लॉस आया वो P&L में अपन ट्रांसफर कर देंगे 10,000 को टू बॉन्ड एंड अमोर्टाइज कॉस्ट 1 लाख रुपीस. अब अपना ये एग्जिस्टिंग मेथड जैसे अमोर्टाइज कॉस्ट से मैं अब हम अच्छा उसी पे हो गया, पहले वाले पे नहीं सेकंड वाले. हाँ, सर फर्स्ट वाले तो इन्होंने आपने ये डिस्कस किया ना ऑन द एंड. सर चेंज इन बिजनेस मॉडल होगा जब भी रिक्लासिफिकेशन होगा. हाँ, इफ देयर इज अ चेंज इन द बिजनेस मॉडल. तो अभी ये व्हाट इज दिस चेंज इन बिजनेस मॉडल कौन बताएगा? क्या जो भैया ने एग्जांपल दिया, तो अगर कोई एंटिटी दूसरे एंटिटी को परचेज कर रही है तो उसका पूरा बिजनेस मॉडल चेंज हो जाता है उससे. नहीं, ये क्या आपने ये एग्जांपल दिया? एक्वायर और सीजेस जो सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है, हाँ, एंटिटी को अपने सिग्निफिकेंट ऑपरेशन वगैरह सीज एक्वायर कर रही है, उससे बिजनेस इंटेंशन बिजनेस मॉडल. नहीं, आपने कुछ और ही एक्सप्लेन कर दिया. ये कह रहे हैं, हाँ क्या बता रहे हैं आप?
amortized to पहले equity base. आपका उस पर्टिकुलर एसेट को लेके क्या इंटेंशन था जब आपने इन्वेस्ट किया या जब आपने उसके अंदर पैसा लगाया, बोरोइंग किया, है ना? तो उस वक्त आपका ये आपका बिजनेस मॉडल क्या होता है? जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इंश्योरेंस कंपनीज, ठीक है ना? इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट कौन कर रहा है? किसी ने किया इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट? है ना? तुमने इंश्योरेंस कंपनी, शुभम, इसने बिजनेस मॉडल का वो श्रीराम जनरल का या क्या बोलते हैं इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट किया, ठीक है, चल रहा है अभी। तो आपने चल रहा है तो कुछ उसकी स्टडी करी क्या ऐसे ही पहुंच गए हैं? आपने किसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या किसी की कोई बैलेंस शीट देखी? अरे भाई तुम ऐसे तुम कोई ऑडिट पे जा रहे हो ना, तो you should see what are the data available on public domain. वो तो आपको एक्स्ट्रा काम करना होता है ना, वो नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, करोगे भी नहीं। एनीवेज, अभी उसमें क्या है, देखिए, जो आपके पास में पैसा आता है ना, और जो भी प्रीमियम्स आते हैं या जो भी आपके पास में, तो अल्टीमेटली यू इन्वेस्ट इट इनटू सम इन्वेस्टमेंट्स। आपका जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है वो किसी न किसी उसमें इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में या आपके कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या कहीं पे वो पैसा लगा देते हैं, ठीक है? तो अभी उन्होंने जो पैसा लगाया है उस पैसे को वो क्या ध्यान रख के लगाते हैं? उनके पास में दो तरीके की लायबिलिटी आ सकती है ना? एक लायबिलिटी आ सकती है पॉलिसी होल्डर के फंड के लिए, है ना? जो पॉलिसी होल्डर्स ने जो पॉलिसीज ले रखी है, तो उनके जब भी क्लेम्स आएंगे तो उनको क्लेम को सेटलमेंट करने के लिए एक लायबिलिटी आ सकती है, और एक लायबिलिटी आ सकती है शेयर होल्डर्स फंड के टुवर्ड्स दी शेयर होल्डर्स फंड। मतलब जिस कभी दिन लिक्विडेट होगा तब ये लायबिलिटी आएगी, आज नहीं आएगी। तो अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू लायबिलिटीज? इसमें तो होल्ड और सेल दोनों से मतलब सेकंड में होल्ड भी लास्ट में पॉलिसी होल्डर फंड के अंदर अगर उसको सेटलमेंट करना है आपको, है ना, पॉलिसी होल्डर्स को सेटलमेंट करना है और आपने इधर इन्वेस्टमेंट लेकर के रखे हैं, और किसी दिन आपके पास में ज्यादा पॉलिसी होल्डर के क्लेम्स आ गए और आपको उनको सेटल करना, तो आप क्या करोगे? जो पॉलिसी होल्डर वाले फंड है उनको आप सेल करोगे, एंड देन यू विल सेटल द क्लेम्स। अभी आपको लगता है कि नहीं यार, ये पॉलिसी होल्डर फंड में के लिए मैंने जितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, वो थोड़ा मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है उससे ज्यादा कर रखा है ना? ये तो इन्वेस्टमेंट तो मैंने 1000 करोड़ का कर रखा है, लेकिन एक्चुअल में मुझे लगता है कि यार 700-800 करोड़ ही बहुत है। आपने ये रिव्यू किया, तो आपने क्या करा कि मैं इसका बिजनेस मॉडल जो है ना वो चेंज कर देता हूँ। तो आप अपने ट्रेजरी के पास गए, इन्वेस्टमेंट कमेटी के पास गए और बताया कि साहब ये इसमें अभी अपना आगे का एक्सपेक्टेशन ये है, तो व्हाट वी कैन डू कि ये जो पॉलिसी होल्डर फंड का इन्वेस्टमेंट है उसको हम शेयर होल्डर फंड के इन्वेस्टमेंट में डाल। सो योर बिजनेस मॉडल इज चेंज्ड। आप अभी जो होल्ड, सेल और होल्ड दोनों में से किसी एक के लिए जो फंड था उसको आप ये कह रहे हो कि साहब मैं इसको होल्ड के लिए लेके जा। So my business model with reference to that investment is changed. तो ऐसे अगर सिनेरियो कहीं आ रहा है तो in that case you can reclassify. तो ये मैंने आपको एग्जांपल एक्चुअली OCI टू ACM का दे दिया। सिमिलरली ACM शेयर होल्डर फंड से मुझे लगता है कि नहीं अभी पॉलिसी होल्डर फंड के लिए जरूरत होगी, तो मैं शेयर होल्डर फंड का पैसा उधर की तरफ लेके जा रहा हूँ, मेरा बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में भी आप उसका रिक्लासिफिकेशन कर सकते हो, बट दिस रिक्लासिफिकेशन इज परमिटेड ओनली वंस इन अ ईयर एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द
किया। जब साल की शुरुआत हो तब आपको ये काम करना होता है। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सारे काम जो है ना बड़े कॉर्पोरेट्स में होते हैं। इनफैक्ट छोटे कॉर्पोरेट्स में तो छोटी मोटी चीजें चलती रहती है, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं वहां पे आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार आपने अपने ऑडिटर ने अपनी मर्जी से करा दिया, या नीचे जो सीएफओ आया उनकी अकाउंट्स की टीम में अपनी मर्जी से करा दिया। ये सारी चीजें थ्रू होती है इन्वेस्टमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड या थ्रू द बोर्ड। तो जब आप इस तरीके की कोई चीज हो रही है तो आपको वहां तक जाना चाहिए कि यार इन्वेस्टमेंट कमेटी ने ऐसा डिसीजन लिया है क्या, वेदर दे हैव टेकन सच ए डिसीजन कि भाई हम इसको होल्ड की जगह बीच में भी सेल करने का डिसीजन ले लिया, हमने इसको फंड को ट्रांसफर कर दिया, क्या ऐसा कोई डिसीजन इन्वेस्टमेंट कमेटी ने लिया है क्या? तो आपकी जो सपोर्टिंग है ना ऑडिट के लिए वो इस तरीके की होनी चाहिए, है ना। इट शुड नॉट बी सिंपल दिस कि किसी के भी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपने इसको चेंज कर दिया। यू शुड हैव द रेलेवेंट एविडेंस बिफोर एनी सच ट्रांसफर। क्योंकि आपको ऑडिट क्या करना है, बिजनेस मॉडल कैसे चेंज हुआ है, जब भी तो आप बोलोगे। तो बिजनेस मॉडल चेंज हुआ है उस तो ये तो कभी हर साल आप बिजनेस मॉडल चेंज कर दोगे, लिख के ले लोगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया और ये कर दिया। दैट इज नॉट द करेक्ट अप्रोच फॉर एग्जामिनिंग सच टाइप ऑफ reclassification. Now you can continue. Now the existing method is amortized cost and अपने को उसको FVOCI में करना है। तो अपन फाइनेंशियल एसेट्स को अपन वैल्यूड करेंगे फेयर वैल्यू पे, और वही फिर जब अपन अपने जो फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट है उसका जो डिफरेंस होगा, अपन ने पहले FVTPL पे करा था उसको P&L में ट्रांसफर किया था। तो अभी OCI में करे तो अपन उसको जो भी डिफरेंस आएगा गेन या लॉस का वो OCI में ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पे इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाइड होगी कॉस्ट पे। और वही रिक्लासिफिकेशन अलाउड जब भी होगा जब देयर इज एन चेंज इन अ बिजनेस मॉडल एंड रिक्लासिफिकेशन टू बी डन ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। एग्जांपल, बॉन्ड ऑफ ₹1 lakh reclassified as an FVOCI, fair value of an reclassification is 90,000, so the difference of the fair value and the carrying amount is 10,000, that is loss which is transferred to the OCI. Now move to the next. The existing method is FVTPL and the new method is FVOCI. So basically in both the case the financial assets we are valued at fair value, and the fair value gain and loss of the post reclassification will be transferred to the OCI. The effective interest rates to be computed such that the future cash flow discounted to the fair value. जो भी अपन effective rate निकालेंगे, जो अपना फ्यूचर कैश फ्लो है डिस्काउंटेड जो अपन करेंगे उसको वो फेयर वैल्यू के इक्वल आना चाहिए ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। पर इसमें ये है कि जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है उसको अपन रेस्ट्रिक्टेड है वो रिक्लासिफिकेशन के लिए, क्योंकि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को अगर अपन ने एक बार अगर FVOCI पे कर लिया तो इररिवोकेबल चॉइस है, and reclassification is allowed only where there is a change in a business model. Bond for ₹1 lakh reclassified as an FVOCI, the fair value on the reclassification is 90,000. So basically the fair value of loss and gain of post reclassification transfer to the OCI. So OCI loss and reclassification debit to bond on FVTPL 10,000 and bond at FVOCI जो फेयर वैल्यू पे अपन मेजर करेंगे टू बॉन्ड एट FVTPL 90,000. नेक्स्ट केस वेयर FVOCI से अपन रिक्लासिफाई करेंगे FVTPL पे. सो बेसिकली द फाइनेंशियल एसेट्स अपन कंटिन्यू फेयर वैल्यू पे कंटिन्यू करेंगे. जो भी कम्युलेटिव मेरा OCI और गेन और लॉस रिकॉग्नाइज्ड हुआ है टिल डेट ऑफ द रिक्लासिफिकेशन वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे ऑन द डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन ट्रांसफर कर दूंगा. और FVTPL पे अगर अपन इसको रिक्लासिफाई करें तो कूपन रेट अपन यूज करेंगे. और रिक्लासिफिकेशन इज अलाउड ऑन वेयर देयर इज चेंज इन अ बिजनेस मॉडल. एग्जांपल, बॉन्ड फॉर द ₹1 lakh रिक्लासिफाइड एज एन FVTPL, फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन इज 90,000. सो जो भी OCI का गेन और लॉस है ऑन द रिक्लासिफिकेशन डेट अपन P&L में ट्रांसफर कर देंगे. P&L लॉस ऑन रिक्लासिफिकेशन डेबिट टू बॉन्ड एट FVOCI
bond at FETPL to bond at FEOCI 90,000 and 90,000. ये अभी अपने आप ऊपर आइए वापस, तो जहां मैंने एक्सप्लेन किया ना उसके बाद वाली स्लाइड, ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अभी आपका नेक्स्ट आ गया FETPL to FEOCI, है ना। तो इन्होंने लिखा है कि fair अल्टीमेटली दोनों में फेयर value वैल्यू, आती है। केवल मुद्दा इतना है कि ये अब OCI to P&L में OCI से सॉरी P&L से P&L to OCI OCI में चली में जाएगी, gain और loss है। ठीक है। तो आपका जो वैल्यू है वो फेयर वैल्यू है ना। फेयर वैल्यू गेन लॉस पोस्ट रिक्लासिफिकेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू OCI। इसका मतलब जितना फेयर वैल्यू गेन और लॉस आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर के चले गए, उसका कुछ नहीं करना। जिस दिन आप क्लासिफाई करोगे उसके उस दिन बाद आगे का जो भी फेयर वैल्यू और लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस और गेन है, उसको आप OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाओगे। एंड EIR टू बी कंप्यूटेड सच दैट फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड टू फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। वो ठीक है, आपको अल्टीमेटली किस तरीके से इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेथड के बेसिस पे उसका फेयर वैल्यू निकालना है, वो आपको निकालना है। देयर इज रेस्ट्रिक्शन ऑन रिक्लासिफिकेशन इन केस ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपने कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस कर रखा है, तो उसको आप वापस रिक्लासिफाई करके फेयर वैल्यू थ्रू OCI नहीं लेकर के जा सकते हो। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को जब भी हम क्लासिफाई करते हैं तो देन देयर इज एन ऑप्शन अवेलेबल, इररिवोकेबल ऑप्शन अवेलेबल, कि हम इसको या तो प्रॉफिट एंड लॉस लेके जाएं या OCI लेके जाएं। बट वो कौन सा है? इररिवोकेबल ऑप्शन है ना, जिसको रिवोक नहीं किया जा सकता। यही अपन ने रूल पढ़ा ना। तो इन्होंने बोला है कि क्योंकि वो इररिवोकेबल ऑप्शन है तो हम इसको आगे भी रिक्लासिफाई नहीं कर सकते। तो एक बार अगर आपने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को P&L में लेके चले गए तो फिर वो यहाँ फॉल नहीं होगा। अब उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट? अभी आपका जैसे मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड है इन्वेस्टमेंट, है ना, उसको आपको फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस किया हुआ है, लेकिन क्या उसको हम OCI लेके जा सकते हैं? म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स हमेशा PL में ही रहेंगे, है ना? तो फिर ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं? क्या भाई स्पीकर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स है? कोई डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन उसको अगर आप उस डेट इंस्ट्रूमेंट्स को आप PL में कब लेके जाओगे? जब आपके वो जो दो मॉडल हैं, है ना, जो दो क्राइटेरिया हैं, FVTOC सॉरी जो SPPI और कैश फ्लो मॉडल, वो बिजनेस मॉडल, वो अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तो आप उसको PL में लेके जाओगे, है ना। या तो PL में लेके जा सकते हो या आप उसको OCI में लेके जा सकते हो। तो PL में कब लेके जाओगे? जब आपका इंटेंशन है कि इसको हमें ट्रेड ही करना है, लेकिन आपका इंटेंशन चेंज हो गया तो आप उसको OCI में लेकर के जा सकते हो। तो जब कभी भी वो बिजनेस मॉडल चेंज हुआ विद रेफरेंस टू दोज आइटम्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज OCI, जिसको आप केवल FVTL क्लासिफाई कर सकते हो, उसको आप यहाँ नहीं लेके जा सकते। उसी को ही रिक्लासिफाई कर सकते हो जिसको ओरिजिनली आप दोनों में से कहीं लेके जा सकते हो। So that's how this fair value through OCI model will, this will be transferred from one category to another category. हाँ भाई श्रुति गोयल, क्या हुआ? तेरे को आ रहा समझ में कुछ? हैं? तेरे को नहीं आ रहा समझ में? आएगा भी नहीं, मुझे ही पता है। Is there any reason कि हम वो irrevocable decision क्यों है?
Is there any reason? सर कोई रीजन है क्या कि इक्विटी जो इंस्ट्रूमेंट्स और जो म्यूचुअल फंड है उनका सिर्फ टीपीएल में क्लासिफाई होगा? रीजंस है, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका ये नहीं, वो तो कभी भी मेट नहीं करता, दैट इज ओके, क्योंकि वो आप कभी भी उसको सेल कर सकते हो। तो एक्चुअली इसमें रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं, तो उन्होंने ये ऑप्शन जो भी कंपनी है उसको दिया हुआ है कि इन जनरल ये P&L में लेके जा सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि इट इज हेल्ड फॉर क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म, तो फिर आप इसको OCI के अंदर ले जाने का आपके पास में ऑप्शन। और म्यूचुअल फंड के अंदर तो ये है कि जब तक वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई भी पर्टिकुलर आइटम, है ना, तो देन यू हैव टू एक्चुअली टेक इट टू द P&L ओनली। दैट इज हाउ समथिंग हैज बीन डिफाइंड ओवर देयर। मैं एग्जैक्टली रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, बट देयर आर सम लॉजिक्स बिहाइंड दैट। एंड OCI to FPT. यस, म्यूचुअल फंड्स प्राइस तो इक्विटी बेस्ड नहीं, म्यूचुअल फंड्स तो अलग एक इन्वेस्टमेंट्स हो गया ना। डेरिवेटिव्स के अंदर तो आपका ये इट इज ए सिंपल इन्वेस्टमेंट, है ना। डेरिवेटिव्स में क्या है, डेरिवेटिव्स में आपका आगे का प्राइस क्या होगा, है ना, आप उसको कैसे सेटल करोगे, ये सारी चीजें और रहती है। वो म्यूचुअल फंड में सिंपल इन्वेस्टमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, हाँ श्रुति, ये बीच में इसने अटका दिया। आपको समझ में आया? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो, या तो पूरा आता है या नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में कभी नहीं, तो उसमें मार्क्स उस थोड़े थोड़े में मार्क्स तो 0 मिलेंगे ना। तो आपको इसको अगर समझना है तो इधर यू लर्न फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, है ना, जो कि अपने चैनल पे अवेलेबल है, या फिर आप जो अभी तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हुआ उसको पढ़ो, क्योंकि आपने देखा कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब आप ही के बैच के हैं, बट दे ऑल आर, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा, they all know something about the financial instruments। अपने मियाँ मिट्टू बन रहे हैं। यस, या फिर आप किसी बुक से भी पढ़ो। तो जिसने भी अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, जो भी सीरियस नहीं है, अपन यहाँ क्यों इकट्ठा होते हैं, ताकि जो 2-3 लोग आंसर दे देते हैं ना, तो बाकी लोगों में सीरियस नहीं है, सत्य यार ये ठीक कर रहा है, वो एक फर्क पड़ जाता है। नहीं तो क्या है कि आप लोग सब एक ही जगह हो जाओगे कि अच्छा अभी तो ठीक है 2 साल पढ़े एग्जाम्स में, तो अभी क्या पढ़ना। एनीवेज, Now, FVOCI to amortized cost method. Accounting effect on reclassification. हाँ, अभी आप ये देखिए, FVTI से आप FVTI से P&L भी है क्या इसमें? हाँ सर, ये FVOCI to P&L. टू P&L। अभी यहाँ पे चेंज है, OCI का cumulative जब आप FVTL से OCI लेके जा रहे हो, post reclassification. तो वो तो अमाउंट ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में गया हुआ है ना। तो कोई आइटम अगर प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, आपको समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? पहले मैंने कभी आपको बताया होगा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। शमशान घाट है, बताया नहीं बताया, कोई बात नहीं, आज बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? शमशान घाट। शमशान घाट में किसको लेके जाते हैं? मुर्दे को आगे नहीं जाएगा, मुर्दे को जो आगे नहीं जाएगा, मुर्दे को लेके जाते हैं। तो मुर्दा आदमी कभी वापस आता है ना, जनरली नहीं आता है, कभी कोई एक आध बार कोई पिक्चर में बता देता है मैं मुर्दा भी वापस आ गया। तो इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस में लेके गए, उसको वो ये नहीं कह रहे कि आप OCI में लेके जाओ, क्योंकि वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, उसको थोड़ी ना OCI में लेके जाएंगे। लेकिन जो OCI में है
और क्यूमुलेटिव है, उसको भी उसका जिस दिन आप ट्रांसफर करोगे तो मतलब उस दिन वो उसकी डेथ हो गई, उस दिन वो चला गया शमशान घाट में। तो ओसीआई आइटम विल गो टू cumulatively paid. P&L। तो ओसीआई में जितना अकोमुलेटेड बैलेंस है, यही कह रहे हैं ना ये, कुछ और तो नहीं कह रहे हैं। नहीं यही है Cumulative OCI gain loss recognized till date to be reclassified to profit and loss on reclassification of this classification method, है ना? Reclassification is allowed only when there is a change in business model। तो ये ऐसे एक्सप्लेन किया करो भाई जी, आप तो फटाफट पढ़ देते हो, हैं? उससे थोड़ी होएगा काम। चलो आगे चलो। example now method FEOCI to amortized cost model। जो भी OCI का बैलेंस है उसको अपन रिवर्स ऐसे करेंगे कि वो तो लगेगी रिक्लासिफिकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो सब जगह वही कंडीशन है। वो कंडीशन इन्होंने जो रिक्लासिफिकेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, सब जगह ये वाली कंडीशन, सब हर स्लाइड में दिखा रहे, इन दो में नहीं लिखे। तो वो भी यहाँ पे लगे। FEOCI to amortized cost model, OCI balance will be reversed by adjusting the carrying amount of assets। OCI का जो भी बैलेंस है, जो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट होगा कैरिंग अमाउंट में। कॉन्सिक्वेंटली फिक्स्ड एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट वुड बी carried at a carrying amount as if amortized cost method was used right from the beginning। जो अब अपन इसको FEOCI to amortized cost में रिक्लासिफाई करें तो ऐसे इस अकॉर्डिंगली करेंगे कि जो फाइनेंशियल एसेट्स की जो कैरिंग अमाउंट है, अगर अपन अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड यूज करते हैं पहले से राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो अपनी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू आएगी तो वो हो जाएगा। और इंटरेस्ट इनकम टू बी रिकॉग्नाइज यूजिंग ओरिजिनल इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। रिक्लासिफिकेशन इज अलाउड ओनली व्हेन देयर इज एन चेंज इन बिजनेस मॉडल। एग्जांपल जैसे बॉन्ड ऑफ ₹1 लाख रिक्लासिफाइज एज अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू ऑन रिक्लासिफिकेशन इज 90,000, 10,000 लॉस जो अपने OCI में रिकॉग्नाइज किया था टिल डेट ऑफ रिक्लासिफिकेशन। अब अपने को जो OCI का जो लॉस है उसको रिवर्स करना है, जिससे अपना जो अमोर्टाइज कॉस्ट का जो अपन निकालेंगे कैरिंग अमाउंट, वो ऐसा होगी जो अपन अमोर्टाइज कॉस्ट अगर अपन बिगनिंग ऑफ द ईयर में अमोर्टाइज कॉस्ट से यूज कर रहे थे तो उसका जो कैरिंग अमाउंट आएगा वो तो अपन पहले इसको OCI लॉस को रिवर्स करेंगे, बॉन्डेड FEOCI to OCI लॉस ऑन रिकॉग्नाइजेशन 10,000 एंड बॉन्ड को एज एन अमोर्टाइज कॉस्ट ₹1 लाख से अपन बुक कर लेंगे। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। FVTPL टू अमोर्टाइज कॉस्ट मेथड। करंट फेयर वैल्यू जो होगी अपने कैरिंग अमाउंट, उसको ही कैरिंग अमाउंट मान लेंगे अपन, ऑन विच द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट टू बी कैलकुलेटेड। फेयर वैल्यू गेन एंड लॉस जो ऑलरेडी P&L में ट्रांसफर हो चुका था उसको अपन रिवर्स नहीं करेंगे, और अपन करंट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि जो अपना कॉस्ट है और जो करंट फेयर वैल्यू है वो इक्वल आ जाए। तो अपन उसको ऐसे डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे अपना जो कॉस्ट और करंट फेयर वैल्यू है वो दोनों इक्वल आ जाए, जिससे अपनी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकल जाए। तो रिक्लासिफिकेशन इज अलाउड ऑन व्हेन देयर इज एन चेंज इन अ बिजनेस मॉडल। इसका एग्जांपल अगर अपन देखें तो जो अपना अपन जो भी अपनी फेयर वैल्यू होगी, अपन अगर जब इसको रिक्लासिफिकेशन करेंगे उस टाइम अपन वो वाली फेयर वैल्यू बुक कर लेंगे, और जो अपना फेयर वैल्यू गेन लॉस जो था उसको अपन P&L में ट्रांसफर उसको रिवर्स नहीं करेंगे, ट्रांसफर ही रहने देंगे उसको, ऑलरेडी जो ट्रांसफर हो चुका है। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपको जिस दिन भी आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस से किसी पर्टिकुलर आइटम को अमोर्टाइज कॉस्ट लेके जाओगे तो उसकी अमोर्टाइज कॉस्ट क्या होनी चाहिए, वो उस तारीख की उसकी फेयर वैल्यू हो जाना है। और देन यू कैन, ये जो ACM है, ACM कब होगा? जब उसका बिजनेस मॉडल वापस ही हो जाएगा कि भाई वहां पे इसकी जो नहीं उसके अलावा वो जो SPPI टेस्ट और वो भी मीट हो गए, है ना, बिजनेस मॉडल अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो देन इट विल बी क्लासिफाइड एज ACM। तो उसमें फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई इसका पेमेंट आगे किस तरीके से हो रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और
basis that only the EIR will be computed. तो आपको amortized cost as of the date of the transition वो लेना है जो उसका fair value है, और आगे के लिए prospectively इसका effective interest rate और जो भी accounting है according to ACM that will be done in such cases. सो बेसिकली ऑन रिक्लासिफिकेशन में ये है कि जब भी अपना चेंज इन बिजनेस मॉडल होगा तो ये अपन रिक्लासिफिकेशन करेंगे, और वो प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम रिक्लासिफिकेशन डेट ही होना चाहिए अगर एंटिटी को अपनी फाइनेंशियल एसेट्स को रिक्लासिफाई करना है तो वो प्रोस्पेक्टिवली होना चाहिए ऑन रिक्लासिफिकेशन डेट पे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इम्पेयरमेंट मेथोडोलॉजी. सो हाँ, तो ये रिक्लासिफिकेशन पे अपन थोड़ा जो यहाँ पे है ऑनलाइन उनसे भी बात करते, देखते हैं क्या इनका व्यू है. हाँ, प्रज्ञा अग्रवाल. प्रज्ञा, आर यू देयर? ओजस्वी मोहता. ओजस्वी मोहता. तानिया. तानिया, आर यू देयर? टिकेंद्र सिंगल. हेलो. यस टिकेंद्र. यस सर. हाँ, टिकेंद्र, पहले तो तुम ये प्रज्ञा, तानिया और ओजस्वी इनको भी बाद में बताना कि व्हाई दे हैव नॉट रिवर्टेड, एंड नाउ यू एक्सप्लेन कि आपको क्या समझ में आया फ्रॉम द रिक्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब्जेक्ट से. सर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफआई में ऐसा है कि जब एंटिटी का बिजनेस मॉडल चेंज होता है तो एंटिटी प्रोस्पेक्टिवली उसमें चेंज करती है अपने फाइनेंशियल एसेट्स के वैल्यूएशन में, और फाइनेंशियल लायबिलिटीज का रिक्लासिफिकेशन परमिटेड नहीं है एज पर इंड एस, और एंटिटी को बिजनेस मॉडल टेस्ट चेक करना पड़ता है. जैसे कि अगर एसीएम में रिक्लासिफाई हो रहा है तो हमने पहले भी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एसपीपीआई टेस्ट और बिजनेस मॉडल टेस्ट एंटिटी को दोबारा से चेक करना पड़ता है कि वो अभी फुलफिल हो रहा है, मीट कर रहा है, नहीं कर रहा है. और इसमें जो अपने 6 केसेस बनते हैं एटीएम टू एफबीटीपीएल, जैसे ओसीआई टू पीएल होता है जब उसमें अपन ओसीआई का सारा जो लॉस है उसको दोबारा से असेट में एडजस्ट करते हैं और फिर उसको असेट को दोबारा एसीएम पे लेके आते हैं. तो हर असेट का अपना अपना क्लासिफिकेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट है सर. तो आपके हिसाब से जो असेट अगर अपन फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस है और उसको हम बिकॉज ऑफ द बिजनेस मॉडल टेस्ट हम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई लेके जा रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? सर असेट पहले पीएनडल पे थी और ओसीआई पे है तो असेट तो कंटिन्यू मेरे फेयर वैल्यू पे मेजर होती रहेगी, बट जो पोस्ट क्लासिफिकेशन मेरा जो फेयर वैल्यू होगा वो अब मैं ओसीआई में लेके जाऊंगा, क्योंकि अब तक वो पीएनडल में जा रहा था, अब ओसीआई में जाने से वो ओसीआई में रिक्लासिफाई हो जाएगा. और मेरे फ्यूचर कैश फ्लोस को मैं ध्यान में रखते हुए अपनी न्यू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालूंगा और उसके अकॉर्डिंग आगे मेरा उसका वैल्यूएशन होएगा. ओके. श्रुति गुप्ता. Shruti Gupta, are you there?
नाम नोट करना जिसका। यस, अच्छा अब आप बताइए मुझे कि आगे का ये जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट इम्पेयरमेंट। तो क्या थॉट है आपका कि ये क्या डिस्कस करने वाले हैं? यस, अगर किसी भी एसेट की कैरिंग वैल्यू में सिग्निफिकेंट इंक्रीज आता है जिसको अपन को अकाउंट फॉर करना रहता है, तो इम्पेयरमेंट लॉस के तरीके से अकाउंट फॉर करना। मतलब जब कैरिंग अमाउंट हम रिकवर नहीं कर पाएंगे किसी चीज की, तो रिकवरेबल अमाउंट कम होता है कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट कम होता है कैरिंग अमाउंट। अभी किसी ने इम्पेयरमेंट का किसने डील किया? दर्शी, आपने कुछ डील किया इम्पेयरमेंट से रिलेटेड कुछ? इम्पेयरमेंट अपन बेसिकली जो एसेट का वैल्यू बचेगा उसको अपन को अपने एसेट से रिमूव करना पड़ेगा। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? Why notional loss? It is actual loss. We have to show it in our parents, and then we also have to I'm not able to explain it properly. चलो कोई बात नहीं। सो बेसिकली हम जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि कोई भी एसेट है ना, आप देखिए जो इम्पेयरमेंट है वो दो तरीके से डील हो रहा है। एक तो इम्पेयरमेंट हो रहा है कैश जनरेटिंग यूनिट, उसको कौन सा स्टैंडर्ड डील करता है? इंड AS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। वहां फाइनेंशियल असेट्स का इम्पेयरमेंट डील नहीं होता है। और इंड AS 109 दैट डील्स विद द इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल एसेट्स। तो अभी जो अपन टॉपिक डील कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एसेट का इम्पेयरमेंट डील कर रहे हैं। और फाइनेंशियल एसेट का इम्पेयरमेंट कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स, जब हमें ये रियलाइज होएगा कि यार ये फाइनेंशियल एसेट का पैसा तो हमें आना ही नहीं है, या कम आएगा, या बाद में आएगा, आना ही नहीं है, कम आएगा, या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके बाद में आएगा। आप अभी तक ये सोच रहे थे कि नहीं ये तो 6 महीने में आने वाला है, लेकिन आपको ये समझ में आया कंसीडरिंग दी सिचुएशन या कंसीडरिंग सम एग्रीमेंट एंटर्ड विद दी डेटर्स और विद दी जिसको भी आपने पैसा दे रखा है कि साहब ये पैसा आज नहीं, आज हम सेम पैसा आज नहीं, हम आज के 3 साल बाद लेंगे। तो कैरिंग अमाउंट कितना है? सपोज मेरा 1000 करोड़ रुपीस पैसा आना है ना, मेरे को लग रहा था 6 महीने में आने वाला है, और उसकी जगह मैंने एग्रीमेंट ये कर लिया कि मेरे को 1000 करोड़ आप 3 साल बाद दे दो। तो मेरा कैरिंग अमाउंट कितना है? कितना है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना, तुम इतने बड़े फिगर को देख के घबरा क्यों रहे हो? बोलना ही तो है, करोड़ बोल दो, मिलियंस बोल दो। 1000 करोड़ आना कितना है? 1000 करोड़। तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट आपका कैरिंग अमाउंट है 1000 करोड़, बट वो आज अगर लेते हो तो वो है 3 साल बाद आएगा, तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का लॉस हो रहा है। तो अभी आपके जो स्टैंडर्ड है ना, जो अभी तक आपने पढ़े हैं, वो इसको अकाउंट फॉर करने की बात करता है क्या? नहीं, वो नहीं करता है। लेकिन हमारे स्टैंडर्ड है ये कहते हैं कि नहीं, आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी अकाउंट फॉर करिए, वहां पे भी लॉस हो रहा है, so you should account for that loss also, time value of money also।
3 साल बाद आ रहा है, और वो कब रिकॉग्नाइज करना, और पीरियड ऑफ 3 इयर्स कब रिकॉग्नाइज करोगे उसको? कोई चीज इंपेयरमेंट होगी तो वो तो आज ही रिकॉग्नाइज होगी, है ना? तो उसके प्रेजेंट वैल्यू को आप आज लेके आओगे कि आज क्या प्रेजेंट वैल्यू है जो 3 साल बाद मेरे को पेमेंट आना है, एंड दैट विल बी अकाउंटेड फॉर एज लॉस इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अभी ये इंपेयरमेंट बताएंगे और फिर अपन इसको वापस डिस्कस करेंगे कि डिटेल में। The meaning of an impairment of an assets as per Ind AS 109. Impairment loss, amount by which the carrying amount of an assets or a cash generating unit exceeds recoverable amount. Recoverable amount of an asset is higher of its fair value, less cost of its disposal, and its value in its use. As per the new impairment methodology, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि अपना कोई क्रेडिट इवेंट अकर ही हो उसके अकॉर्डिंगली अपन अपना जो क्रेडिट लॉस है वो रिकॉग्नाइज करें। तो एज पर न्यू मेथोडोलॉजी इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर अ क्रेडिट इवेंट टू बी अकर्ड बिफोर क्रेडिट लॉस आर रिकॉग्नाइज्ड। नाउ एंटिटी को अपने अकाउंट्स में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस और चेंज इन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को रिकॉग्नाइज करना ही है अब, और द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस इज कंप्यूटेड एट ईच रिपोर्टिंग पीरियड to reflect the change in the credit risk since the initial recognition। जो भी अमाउंट है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का वो हर रिपोर्टिंग पीरियड पे अपने को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अब विद इन द स्कोप ऑफ इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट एंड आउट ऑफ द स्कोप ऑफ इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मेजर एट अमोर्टाइज कॉस्ट और FVTOCI, तो वो विद इन द इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट में आएंगे। अपने लोन कमिटमेंट इशूड बाय एंटिटी दैट आर नॉट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू P&L, instrument including loan, trade receivable and other debt instrument like financial guarantee contracts are within the scope of impairment requirement, and not which are not in the scope of impairment requirement are equity instrument, जो अपन FVTPL पे अगर एक बार अपन ने मेजर कर लिया तो वो irrevocable है in equity investment, loan commitments issued by an entity that are measured at fair value through profit and loss account, other financial instrument that are measured at fair value through profit and loss account। ये सब अपने impairment requirement के स्कोप में नहीं आते। ये क्यों नहीं आता इक्विटी इन्वेस्टमेंट? सर अगर अपन ने FVTPL पे इसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो नहीं आएगा, नहीं तो अगर OCI पे करा जो आइटम्स फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज हो रहे हैं थ्रू P&L, वो तो जब आप उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो फेयर वैल्यू तो इम्पेयरमेंट ऑटोमेटिक कंसीडर हो जाता ना, बिकॉज एवरी टाइम एट एवरी रिपोर्टिंग डेट यू हैव टू फेयर वैल्यू दैट आइटम, तो इसलिए वो स्कोप आउट है। जो आइटम्स अमोर्टाइज कॉस्ट पे हैं उनका इम्पेयरमेंट हो रहा है। yes. Expected credit loss model, first point, the expected credit loss is required to be applied on the day one from for all the financial assets। expected credit loss जो है अपन day one से रिकॉग्नाइज करने लग जाएंगे, अप्लाइड करने लग जाएंगे अपनी सारी फाइनेंशियल एसेट्स पे। the present value of all cash shortfalls over the expected life of financial assets। अब ये present value of all cash shortfalls means difference between the contractual cash flow that are due to an entity as per their contract। जो भी contractual cash flow जो entity ने अपने contract जो भी meet किए उसके according जो है, और जो कंपनी expect कर रही है cash flows कि ये कंपनी को रिसीव होंगे, उन दोनों का डिफरेंस उसको अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर जो भी अपनी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है उससे डिस्काउंट करेंगे, तो अपना ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश शॉर्टफॉल्स आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स अपने को ऑब्वियसली एस्टिमेट करनी चाहिए रिलायबली। एज पर द न्यू इम्पेयरमेंट मॉडल, द इम्पेयरमेंट लॉस वुड बी रिकॉग्नाइज्ड इवन फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स दैट आर न्यूली ओरिजिनेटेड और एक्वायर्ड। चाहे अपन ने न्यूली ओरिजिनेट करिए एक्वायर्ड करिए फाइनेंशियल एसेट, उसका भी अपने को इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना है। The entity shall measure the expected credit loss of a financial assets in a way that these following things are reflected in that expected credit loss।
First, the unbiased and probability weight amount that is determined by evaluating a range of possible outcome. Entity का कोई एक evaluating range होगा possible outcome से, जिससे वो unbiased और probability weight amount निकाले. टाइम वैल्यू, जैसे सर ने बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस में. रीजनेबल एंड सपोर्टिव इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एट द रिपोर्टिंग डेट अबाउट द पास्ट इवेंट, करंट कंडीशन एंड फोरकास्ट ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशन. ये सब इनकी रिसर्च रीजनेबल एंड सपोर्टिव इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंटिटी के पास अगर वो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस रिकॉग्नाइज कर रही है. तो अब देयर आर three stages for expected credit loss. Move to the stage 1. Stage 1 approach 12-month expected credit loss होगा. जैसे अपन ने पढ़ा था, expected credit loss अपने को each reporting period पे recognize करना है. इंटरेस्ट रेवेन्यू जो होगा वो अपन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से अपना जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है, ग्रॉस कैरिंग वैल्यूज पे अपन इंटरेस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे. एप्लीकेबल इंस्ट्रूमेंट ऑल फाइनेंशियल एसेट्स. एनबीएफसी का किसने किया ऑडिट? एनबीएफसी में कौन गया है? कोई नहीं गया आप लोगों में से एनबीएफसी के ऑडिट पे? चलो ठीक है, एक बार एक्सप्लेन करो. All financial assets expect those having low credit risk, जिसकी low credit risk है उसके अलावा, और initial recognition पे, and equity instrument या investments includes debt instrument and जो classified हुआ है FVOCI पे या amortized cost पे. Let's move to the example of stage 1. On Jan 1st, A Limited issue 8% 5-year loan to B Limited. Interest payable annually at the end of the year, amounting of rupees 100 crores. The loan is classified as an amortized cost. On the same date, the entity estimates the future cash flow based on the probability of B Limited defaulting within the next 12 months. The probability of such default is 15%. ये entity के according 15% का default entity मान रही है B Limited से. ये अपने को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज एंड एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज ओवर द ईयर प्रोवाइडेड है, जो एंटिटी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटिटी एक्सपेक्ट करती है, जो एंटिटी को लगता है कि इतना ही रिसीव होगा, वो वाले सारे कैश फ्लोज. अब अपने को इसका अपन एम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करेंगे. अपना इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8% है. सो बेसिकली अपन ने पढ़ा था कि जो अपना कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो है और जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है उसका डिफरेंस अपन लेंगे तो वो अपना कैश शॉर्टफॉल आ जाएगा, और उसको अपन अगर अपने डिस्काउंटिंग ऑफ पीवी करते हैं उसको, तो अपना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बन जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश शॉर्टफॉल. तो यही अपन यहाँ पे करा है, डिस्काउंटिंग करा है, इन दोनों का कैश शॉर्टफॉल का डिफरेंस लेके यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर करा है, उसका पीवी निकाला है. अब बेसिकली अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट दे रखा था 15%. अपन पीवी ऑफ कैश शॉर्टफॉल को प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस आ जाएगा. प्रोबेबिलिटी ऑन द डे 1 दैट इज 884859. कैरिंग अमाउंट अपना 100 करोड़ है. अपन 8% ऑफ इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट थी, उसको अपना इंटरेस्ट रेट 8% से ऑन अ कैरिंग अमाउंट बुक कर लेंगे. जो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट से अपन ने पीवी ऑफ कैश शॉर्टफॉल किया था, उसको अपन एज एन इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लेंगे. दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस अकाउंट डेबिट टू 8% ऑफ लोन ऑन अमोर्टाइज्ड कॉस्ट. एंड इंटरेस्ट रेवेन्यू जो अपन ने कैरिंग अमाउंट पे 8% बुक करा, वो अपन इंटरेस्ट रेवेन्यू इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम बुक कर लेंगे. नाउ हाँ, क्या समझ में आया आप लोगों को? अरे स्पष्ट बोलो, नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि स्पीकर ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया. अभी आप देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं. इसने अभी एक स्टेज 1 की बात करी, अभी आगे स्टेज 2 और 3 भी है, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो. चलो, तो ये स्टेज 1, 2, 3 जनरली अगर अपन देखेंगे ना, तो ये स्टैंडर्ड में, ये स्टैंडर्ड जो है वो बैंक्स और एनबीएफसी पे ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू दी अदर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग. उनके यहाँ तो क्या होता है, बड़ा सिंपल सा होता है. इस तरीके की स्टेजेस
जनरली नहीं होती है। बट बैंक्स के अंदर तो क्या होता है कि उनका काम ही पैसा देना है। कोई बात नहीं है। लेकिन इंडिया कभी बनाती भी तो होगी, इंटरनली तो बनाती होगी, पता नहीं है ना, तो मैं तेरे को बता देता हूँ। बैंक जो है वो करीब सारे बैंक्स इंटरनली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर आईएफआरएस या एज पर इंड एस बनाते हैं। उनको आरबीआई से भी मैंडेट है, आप इनको बनाते रहिए। और हर बड़े बैंक ने अपने यहाँ पे आईएफआरएस इंड एस के लिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंट्स या एक अलग से सेपरेट डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है। और एनबीएफसी के यहाँ तो लगता ही है ना, जिसकी भी एनबीएफसी की 250 करोड़ के ऊपर नेटवर्क हो गई या जिसके बॉन्ड्स वगैरह लिस्टेड हो गए, तो दे हैव टू अप्लाई दी इंड एस, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ नहीं लगता है, अपने पढ़ने में क्या बुराई है? चलो आपको क्या दिक्कत है, उनके यहाँ लगता है या नहीं लगता है? अपन तो पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पता कोई कल को बैंक की कंसल्टेंसी आ जाए तेरे को, तो उस दिन थोड़ी बहुत तू बोलेगा कि साहब आपके तो लगता ही नहीं था है। तो हमें तो तैयार रहना पड़ता है। आपको, आप जो फील्ड में काम करते हो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। उसके लिए फिर आप ये नहीं कहोगे कि अरे साहब वो मैं बुक देख के बताता हूँ। अब आपके पास कोई आ गया मान लो पूछने के लिए, वो एक्सपेक्ट करता है, आप दुनिया भर में क्लेम करते हो कि साहब मैं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एक्सपर्ट हूँ, और क्लाइंट आया बोले यार मैं बुक देख के बताता हूँ, क्लाइंट बोले यार ये नहीं एक्सपर्ट, क्योंकि आपने बुक देखने में 1 घंटा लगा दिया। So we should always be ready। अपन ये क्यों करते हैं क्लासेस वगैरह? ये क्लासेस इसलिए करते हैं कि अपन भी रेडी हो जाएं, अपने को भी पता रहे, है ना। ये लोग क्लास ये करते हो, रेडी में हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा तुम लोग एम्बेडेड डेरिवेटिव और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ये कुछ न कुछ पढ़ते हो, तो आपने दिमाग में रहता है कि यार ऐसा कुछ चीज है। तो क्लाइंट एक बार का सामने आता तो उसको एक बार का तो रिप्लाई दे देते हैं, बाद में वो जाता तो पीछे से और पढ़ाई कर लो कि यार ये क्या हो रहा है। सो ये जितने भी बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, इन सब के यहाँ पे ये चीजें ज्यादा लगती है, खासकर की ये वाला इम्पेयरमेंट वाला स्टैंडर्ड्स। और आप देखेंगे बैंक में भी सब जगह सिस्टम्स होते हैं। अभी बैंक्स का सिस्टम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए का, है ना। बैंक ऑडिट किया ना कुछ लोगों ने, उन लोगों ने तो करीब 9-10 लोगों ने बैंक ऑडिट किया था ना। तो वहां पे क्लासिफिकेशन का है ना 90 डेज या, है ना। तो ये बात कर रहे हैं डिफॉल्ट की, यहाँ इन लोगों ने लिखा ना डिफॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो वो वही है कि कितने डेटर्स का या कितने एडवांस वो दिए हुए थे, या किस एडवांस का आगे क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, उसके वो किसके बेसिस पे जज करते हैं? बेस्ड ऑन द पास्ट डाटा, है ना। कि पहले कितने लोगों ने डिफॉल्ट किया, कितने परसेंटेज ने डिफॉल्ट किया, है ना। आगे क्या मार्केट सिनेरियो है, उसके बेसिस पे कितने लोग अब फ्यूचर में डिफॉल्ट करेंगे। ये सारा कैलकुलेशन चलता है इसमें, इट्स ऑल एस्टिमेटेड वर्क। बट ये सारा पास्ट डाटा के बेसिस पे सारी बैंक, सारी एनबीएफसी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हैं, और उस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालने के बाद में वो ये कोशिश करते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर लोन में से कितना पैसा रिकवर होगा, ठीक है। और उसके बाद जो पैसा एज पर इंड एस 109 ये लिखा हुआ है कि जिसमें 30 दिन से ज्यादा, सॉरी अप टू 30 दिन तक का डिफॉल्ट है, दैट इज स्टेज 1, और जिसमें 30 से लेके 90 डेज तक का डिफॉल्ट है, दैट इज स्टेज 2, और जिसमें 90 डेज से अबव का डिफॉल्ट है, दैट इज स्टेज 3।
तो जो 90 डेज के अबव का डिफॉल्ट है वो एज पर आरबीआई भी एनपीए है, उस पे आरबीआई के हिसाब से भी एनपीए का प्रोविजन होना चाहिए। लेकिन स्टेज 1 में आरबीआई के हिसाब से प्रोविजन नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, कुछ अडॉक बेसिस पे कुछ होता होगा, अदरवाइज वो पर्टिकुलर एक अमाउंट को लेके, पर्टिकुलर एडवांस को लेके आरबीआई में उसके प्रोविजन की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इन्होंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया वो स्टेज 1 की प्रोविजनिंग को एक्सप्लेन किया है ना। और इन्होंने क्या बताया कि साहब स्टेज 1 का जो प्रोविजनिंग करेंगे वो हम, जैसे मान लीजिए वही प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके जो अभी अपन बात कर रहे थे, है ना, मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं इन्वॉल्व होऊंगा, तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके और आप जो भी उसका ग्रॉस वैल्यू आउटस्टैंडिंग है उसका प्रोविजन अलग से करोगे, तो इधर तो आपने उसका प्रोविजन कर दिया अलग से, और जो ग्रॉस वैल्यू है उसके ऊपर आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से बेसिस पे इंटरेस्ट भी कंप्यूट करके और उसकी इनकम अकाउंट फॉर करो। तो स्टेज 1 में ये व्यवस्था है। अभी हम स्टेज 2 पे आते हैं, यही है ना, क्या कुछ अलग बोल दिया मैंने? Thank you, So now Rishabh. Priyanshi will explain the stage 2 as well as stage 3 impairment requirements. Now let us move with stage 2. So stage 2 basically talks about when there is a significant increase in the credit risk or there is a significant increase in the probability of default. Then in that, since it's initial recognition, then in that case we classify that particular financial instrument or financial asset in stage 2. So the entity is required to measure the loss allowance for a financial instrument on an amount equal to the lifetime expected credit loss if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition. तो जैसे स्टेज 1 में हमने देखा था, हम एक्सपेक्टेड जो प्रोबेबिलिटी देखते हैं वो नेक्स्ट 12 मंथ्स तक की देखते हैं, बट स्टेज 2 में हम लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी देखते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की। सपोज कोई हमने लोन दे रखा है और उस लोन को हमें एक्सपेक्टेड है कि वो 10 ईयर्स के, उसका जो लाइफ है वो 10 ईयर्स है, तो हम पूरा नेक्स्ट 12 मंथ्स में कितना कैश फ्लो या कितना अमाउंट रिकवर हो सकता है वो नहीं चेक करेंगे, हम पूरा लाइफ टाइम में देखेंगे कि विद इन द स्पैन ऑफ 10 ईयर्स हम कितना अमाउंट रिकवर कर पाएंगे। इसकी क्या अप्रोच फॉलो करते हैं स्टेज 2 रिकॉग्नाइज करने के लिए, हम कैसे अकाउंट फॉर करते हैं, तो अप्रोच हम इसमें फॉलो करेंगे, लाइफ टाइम ईसीएल फॉलो करेंगे, और इंटरेस्ट रेवेन्यू हम कैसे बुक करेंगे। इसमें इंटरेस्ट रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट वो अमाउंट हुआ जिस अमाउंट पे हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अपनी बुक्स में कैरी कर रहे हैं, उस अमाउंट पे हम EIR अप्लाई करके इंटरेस्ट रेवेन्यू बुक करेंगे। सभी इंस्ट्रूमेंट पे लगेगा, जिन जिन इंस्ट्रूमेंट पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया क्रेडिट रिस्क में, उन सब इंस्ट्रूमेंट पे अपन स्टेज 2 अप्लाई करेंगे, जिसमें इंक्लूड भी होगा डेट इंस्ट्रूमेंट विच आर क्लासिफाइड एज FVOCI और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे तो लगता ही है, बट FVOCI डेट इंस्ट्रूमेंट इसलिए हमने यहाँ कंसीडर करा है क्योंकि रिस्क एक फैक्टर है, चेंज फैक्टर है, हमने उसे फेयर वैल्यू पे तो रिकॉग्नाइज कर लिया, बट प्रोबेबिलिटी तो उसमें भी डिफॉल्ट के चांसेस तो हो सकते हैं ना, तो अगर उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है तो हम उस इंस्ट्रूमेंट पे भी स्टेज 2 दैट इज इम्पेयरमेंट लॉस का प्रोविजन बनाएंगे। अब है लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस क्या होते हैं। तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस आर डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम ऑल पॉसिबल डिफॉल्ट इवेंट्स ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो एज आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि हम इंस्ट्रूमेंट की पूरी लाइफ देखेंगे, सिंस जब से वो इंस्ट्रूमेंट हमने परचेज करा है तब, परचेज नहीं, जब से वो इंस्ट्रूमेंट हमने हमारी बुक्स में रिकॉग्नाइज करा है तब से लेके उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ में क्या क्या डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटीज है वो सब चेक करेंगे। अब पर्टिकुलरली 109 ने डिफॉल्ट को डिफाइन नहीं करा है कि व्हाट इज डिफॉल्ट मीन, तो सब एंटिटीज अपने अपने डिफॉल्ट की डेफिनेशन अलग अलग होती है, जैसे कि बैंक्स और NBFC जो होते हैं वो डिफॉल्ट RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर सकते हैं और अपना खुद का एक कोई अलग क्राइटेरिया बना के भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रेडिट रिस्क। तो क्रेडिट रिस्क क्या होता है, जब एक पार्टी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल ना कर पाए या फिर जिस चीज को करने के लिए वो ऑब्लाइज्ड है वो उस पर्टिकुलर
अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज नहीं कर पाए या अपना ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज करने से फेल हो जाए, तो उस केस में अनादर पार्टी को जो लॉस हो रहा है वो एक तरीके से दूसरी पार्टी के लिए क्रेडिट रिस्क हो गया। तो इससे रिलेटेड कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। एन एंटिटी and at each reporting date an entity shall assess whether the credit risk on a financial instrument is increased significantly since initial recognition। हर रिपोर्टिंग डेट पे हमें ये एनालाइज करना होगा कि इनिशियल रिकॉग्निशन से कितना सिग्निफिकेंट चेंज हो गया क्रेडिट रिस्क में। और second point is the entity is required to assess the change in the risk of a default occurred over the expected life of the financial instrument and not the change in the amount of expected credit loss। मतलब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं देखेंगे, हम रिलेटिव टर्म्स में देखेंगे कि इनिशियल रिकॉग्निशन से 20% इंक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज हो गया। हम ऐसे नहीं देखेंगे 500 CR इंक्रीज हो गया, 200 CR इंक्रीज हो गया, तो रिलेटिव टर्म्स में मेजर करेंगे। थर्ड पॉइंट इज टॉक्स अबाउट द बेसिक थिंग विच इज कंपैरिजन, कि हम इनिशियल रिकॉग्निशन पे और रिपोर्टिंग डेट पे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम कंपेयर करते जाएंगे प्रीवियस डेटा से। फोर्थ पॉइंट इज एन एंटिटी कैन नॉट रिलाई solely on the past due information while determining whether the credit risk has increased significantly. However, when forward looking information is unavailable, then the entity may use past due information। बेसिकली जनरली तो ऐसा ही होता है कि हम पास्ट इन्फॉर्मेशन पे, मतलब अगर बोरोवर ने पास्ट में कुछ डिफॉल्ट्स करे उसके बेसिस पे ही क्रेडिट रिस्क चेक करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें कभी कभी फ्यूचर ट्रेंड्स को भी देखना चाहिए। हो सकता है कि आगे क्या सिनेरियो, हम अभी से उन्हें भी कंसीडर करना चाहिए। बट कुछ केसेस में अगर हमारे पास फ्यूचर ट्रेंड्स ही अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम पास्ट इन्फॉर्मेशन पे रिलाई करेंगे। एस सर एक्सप्लेन अबाउट द रिबटेबल प्रिजम्पशन की 0 से 30 डेज में हम स्टेज 1 देखते हैं, तो 30 to 90 डेज में हम देखते हैं स्टेज 2। और अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज ओवर ड्यू मोर देन 30 डेज, मोर देन 90 डेज, देन वी क्लासिफाई इन स्टेज 3। The following list of information may be relevant in assessing changes in the credit risk। So कुछ information के basis पे हम पता लगा सकते हैं कि change हुआ है credit risk में। तो first point is existing or forecast adverse changes in the business, financial and economic conditions which may affect the borrower's ability to meet its debt obligations। तो अगर कुछ ऐसी एग्जिस्टिंग कंडीशंस है या तो इकोनॉमी में, या फिर हमें एस्टिमेशन है कि आगे की जो फ्यूचर कंडीशंस है वो ऐसी होगी कि बोरोवर्स अपनी डेट ऑब्लिगेशंस मीट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हमें समझ जाना चाहिए कि क्रेडिट रिस्क बढ़ रहा है इसमें। सेकेंड पॉइंट इज सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सटर्नल मार्केट इंडिकेटर्स ऑफ क्रेडिट रिस्क। मार्केट सिनेरियोज डे टू डे चेंज होते रहते हैं, तो अगर कुछ ऐसा है कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सेम टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मार्केट इंडिकेटर्स चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हमें चेंजेस इन क्रेडिट रिस्क का एस्टिमेशन लगाना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज व्हेन द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, अगर हमारा जो बोरोवर है उसकी क्रेडिट रेटिंग डिग्रेड हो गई है, तो उस केस में भी ये हमारे लिए एक इंडिकेशन है कि डाउनफॉल आ रहा है और हमारे डेट्स हमें शायद रिकवर ना हो। पास्ट ड्यू इंफॉर्मेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ next point is significant change in the value of the collateral supporting the obligation or in the quality of third party guarantees or credit enhancements। जैसे सपोज हमने लोन दे रखा है और लोन के अगेंस्ट में हमने कुछ कोलेटरल ले रखी है, अगर सामने वाली पार्टी लोन रीपे नहीं कर पाती है तो हमें ये एस्टिमेशन लगाना चाहिए कि वो कोलेटरल से हम कितना रिकवर कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्चुअल और सिग्निफिकेंट चेंज इन द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बोरोवर। हम बोरोवर की ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, ऑपरेटिंग साइकिल और फाइनेंशियल पोजीशन देख के भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि वेदर ही विल बी एबल टू पे आवर डेट्स और नॉट। Another point is significant increase in the credit risk on other financial instrument of the same borrower। सेम borrower को हमने दो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अलग अलग है, मान लो एक ट्रेड रिसीवेबल्स है और एक लोन है, तो अगर एक में डिफॉल्ट हो रहा है तो हम एस्टिमेट करेंगे कि दूसरे वाले में भी डिफॉल्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि चेंज इन द रेगुलेटरी, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी ऐसी आ जाती है जिससे बोरोवर का बिजनेस बैडली अफेक्ट होता है, तो उस केस में भी हमारे लिए ये क्रेडिट रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या हुआ? अरे हमें भी ज्ञान दो कुछ हैं, तो फिर क्या डिस्कस करो यार आप। ये हमेशा ये कॉमन फैक्टर है ये हैं? तेरे से क्यों बात करते हैं मुझे तो तुम दोनों ही बात करते हुए नजर आए, और ये कह रहा किससे बात कर रहा था। चलो
क्रेडिट रिस्क ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज कंसीडर्ड लो। कब हम कंसीडर करेंगे कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ या कम है? तो या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डिफॉल्ट के चांसेस ही कम है, या बोरोवर हैज ए स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू पे द कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज, और अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट सिनेरियोज अच्छे भी नहीं चल रहे बट स्टिल वी बिलीव दैट आवर बोरोवर विल नॉट डिफॉल्ट इन पेइंग हिज डेट्स. For example, A Limited acquires the following bonds and classify them as amortized cost investments. A Limited has an internal credit rating system of rating the investments on a scale from 1 to 10. 1 being considered the least credit risk and 10 denote the highest credit risk. A Limited considers a credit risk rating to below 3 to be low credit risk. The credit risk rating at the date of purchase and the reporting date are as follows. इनिशियल डेट पे हमने बॉन्ड ए को ग्रेड 2 दी है और रिपोर्टिंग डेट पे 5 दी है, बी को 4 दी है और रिपोर्टिंग डेट पे 5 दी है. कैन एनीबडी टेल कि हम कैसे इनमें कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट के लिए कौन सी अप्रोच फॉलो करेंगे? 12 मंथ ईसीएल फॉलो करेंगे या लाइफ टाइम ईसीएल फॉलो करेंगे? Anyone from virtual participants? Sandesh. हाँ संदेश. दर्शन. विनय. विनय ममतानी. हेलो हाँ विनय. सर फॉर बॉन्ड ए हम यूज कर सकते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, बिकॉज अगर अपन देखें कि इनिशियल रिकॉग्निशन पे अपन ने उसको सेकंड रेटिंग दी है विच मींस लो क्रेडिट रिस्क, बट अगर अपन रिपोर्टिंग डेट की तरफ देखें तो अपन ने उसको क्रेडिट रिस्क रेटिंग दी है 5 विच मींस कि उसमें बहुत ज्यादा क्रेडिट रिस्क इंक्रीज हो गई है फ्रॉम इनिशियल रिकॉग्निशन टू रिपोर्टिंग डेट. तो उसके लिए लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यूज करना चाहिए क्योंकि उसका अपन ओवर द लाइफ देखेंगे कि वेदर देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन रिस्क और नॉट. पर बॉन्ड बी के लिए जैसे अपन देख सकते हैं कि इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम 4 है और रिपोर्टिंग डेट के टाइम 5 है, तो उसके लिए 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं है. वो 4 से 5 हुआ है, मतलब वेरी सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है, तो इसमें 12 मंथ्स एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यूज कर सकते हैं. Yeah, I think you have explained nicely, and you really deserve applause because you are actually hearing the class. Yeah, continue. यस, तो बॉन्ड ए के लिए हम सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हुआ है ये कंसीडर करेंगे और उस पर लाइफ टाइम ईसीएल अप्रोच फॉलो करेंगे. और बॉन्ड बी में एज ग्रेड इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5 तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम 12 मंथ ईसीएल फॉलो करेंगे. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू स्टेज 3. सो स्टेज 3 बेसिकली ये होता है कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट and the financial instrument is credit impaired. So the entity classify credit impaired when there has been a deterioration in the credit worthiness of an individual or entity. This usually reflected through a low credit score in the individual or reduction in the credit rating assigned to an entity by a credit rating agency. जो impairment होता है, this is impairment is not permanent. Impairment is a temporary situation which can be reversed with the passage of time. बट जैसे कि हमने बोला कि इम्पेयरमेंट टेम्पररी होता है, बट इसको स्टेज 3 में आने के बाद आपको अगर इम्पेयरमेंट रिवर्स करना है तो यू नीड अ ड्रास्टिक चेंज इन द और रिवाइवल चाहिए बोरोवर को बहुत बड़ा, तब जाके हम किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को is some example. Loans are considered impaired when based on the current information and events. It is probable that the creditor will not be able to collect all interest, will be unable to collect all interest and principal payments due according to contractual terms of the loan agreement. Here are some evidence that the financial asset. क्या हुआ भाई? अरे तो उधर ये भी तो कुछ बोल रही है. फिर
समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने को मैं इसको बोल रहा हूँ तो मतलब तेरे को नहीं बोला उस वक्त ऐसा, या तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा? जब मैंने इसको बोल दिया उसको बोल दिया तो तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, तो वो बता दो कि सर मेरे को तो बोला ही नहीं आपने। तो यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन ना, ऐसे क्या कर रहे हो? या तो ये बता दो कि साहब ये बकवास कुछ बोल ही नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कि भाई तू बंद कर, मैं चालू करता हूँ। कुछ तो बोलना पड़ेगा ना तुम्हें, और या फिर उसको सुनो, और नहीं समझ में आ रहा तो बताओ ना कि आप थोड़ा हमें और एक्सप्लेन करो, कौन मना कर रहा है? कंटिन्यू। Here are some evidences that the financial asset is credit impaired. Includes the following observable events: significant financial difficulty of the issuer or the borrower. जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन थी तो मोस्ट ऑफ द बोरोवर्स वर अनेबल टू पे देयर डेट्स। तो अगर ऐसी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है बोरोवर पे या इश्यूअर पे, तो उस केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज और देयर इज अ दैट द एसेट हैज बीन क्रेडिट इम्पेयर्ड। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पास्ट ड्यू इवेंट के बेसिस पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस या ब्रीच होती है तो उस बेसिस पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, ये भी एक इंडिकेटर है। थर्ड पॉइंट इज कंसेशन, दैट इज अगर हमने कोई भी वेव ऑफ कर दिया, मान लो कि मेरा कोई सामने वाले बोरोवर को 100 रुपीज मुझे पे करना था, लेकिन अब वो सिर्फ मुझे इतना पता है कि इतनी इसकी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी नहीं है कि वो 100 पे कर पाए, तो मैंने ही कुछ वेव ऑफ कर दिया और मैंने बोला कि ठीक है 50 पे कर देना, तो this is also a credit impaired. It is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization. Next point is the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties. उस particular financial instrument का active market ही खत्म हो गया है। मान लो मैंने कोई डेट परचेज कर रखे थे किसी कंपनी के, बट वो कंपनी अब लिक्विडेट हो गई, तो अब उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक्टिव मार्केट ही नहीं बचा है। The purchase or origination of financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses. मैंने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऐसा परचेज करा है जो ऑलरेडी डीप डिस्काउंट पे परचेज करा है और जिसका अब चांसेस बहुत कम है रिकवर होने के। और सिर्फ एक ही इफेक्ट नहीं हो सकता है, कंबाइंड काफी सारे इफेक्ट हो सकते हैं जिनके बेसिस पे हमें ये एविडेंसेस मिलेंगे कि दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल एसेट इज क्रेडिट इम्पेयर्ड। नेक्स्ट पॉइंट इज हम कैसे अप्रोच फॉलो करेंगे स्टेज 3 में। तो अप्रोच हमारी लाइफ टाइम ईसीएल रहेगी, बट हियर इज अ चेंज इन द इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू जो हम ईआईआर अप्लाई करेंगे वो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे नहीं करेंगे, वो हम नेट कैरिंग अमाउंट पे करेंगे। मतलब ग्रॉस कैरिंग अमाउंट जिस पे हम बुक्स पे जिस अमाउंट पे हम उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बुक्स पे कैरी कर रहे थे, उसमें से अभी तक अपन जितना इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर चुके उस इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस करके जो नेट कैरिंग अमाउंट है उस पे अपन ईआईआर अप्लाई करेंगे, और ये सभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे एप्लीकेबल होगा जो इंस्ट्रूमेंट्स क्रेडिट इम्पेयर्ड हो गए। पर इसका एग्जांपल है ऑन 1 जनवरी 1 एबीसी लिमिटेड। एग्जांपल समझ लीजिए आप, इससे यू विल बी एबल टू नो ये क्या कहना चाह रही है। On 1 January 1, ABC Limited issues on an 6% 5-year loan to PQR Limited. Interest payable annually at the end of the year amounting to rupees 150 crore. The loan is classified as amortized cost. On the same date, the entity concludes that the loan is credit impaired and the estimates of the future cash flow would be as follows. Contractual cash flow मतलब जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स के अकॉर्डिंग कैश फ्लोज थे वो ये है इस डेट को, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज मतलब अब हमें ये एक्सपेक्टेड है कि इतने कैश फ्लोज आएंगे। सो कंप्यूट द इम्पेयरमेंट लॉस by using EIR of 6%. So here contractual cash flows are 9. Suppose if we consider this first point, contractual cash flows are 9, expected cash flows are 8.5, तो कैश फ्लो का कैश शॉर्टफॉल हो गया 0.5 का। इससे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर से अपन मल्टीप्लाई करके पीवी निकालेंगे। पीवी का हम जनरली देख लेंगे, ये सारे पॉइंट्स देख के पीवी हमारा कैश शॉर्टफॉल का ये आ जाएगा, दैट इज 55919802। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट स्टेज 3 में हम 100% कंसीडर करेंगे। पीवी ऑफ कैश शॉर्टफॉल हम अभी हमने निकाल लिया, और इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस। इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस हमारा जो हो गया कैश फॉल की पीवी ऑफ कैश शॉर्टफॉल इज इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस। अब कैरिंग अमाउंट हमने यहाँ बुक्स में ऊपर रिकॉग्नाइज करा था 150 CR पे, बट अभी मैंने आपको उससे पहले बताया था कि ये नेट कैरिंग अमाउंट पे हम इंटरेस्ट बुक करेंगे। तो 150 CR माइनस इम्पेयरमेंट लॉस जो हमने अभी कैलकुलेट करा, उस पर्टिकुलर नेट कैरिंग अमाउंट पे हम इंटरेस्ट बुक करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 6%।
इसकी फिर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस अलाउंस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस को डेबिट करके उससे बुक कर लेंगे 2-6% लोन अमोर्टाइज कॉस्ट पे। इंटरेस्ट की बुकिंग करने के लिए इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद टू टाइप्स ऑफ अप्रोच। तो जनरली दो अप्रोच होती है, एक तो जनरल अप्रोच होती है और एक सिंप्लीफाइड अप्रोच होती है। तो जनरल अप्रोच बेसिकली टॉक्स अबाउट कि दे आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच, 12 मंथ ECL एंड लाइफ टाइम ECL। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नेक्स्ट 12 मंथ पे फोकस करोगे तो 12 मंथ ECL देख लो, और अगर आप पूरा फाइनेंशियल ओवर द लाइफ ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो तो लाइफ टाइम ECL देख लो। जो सिंप्लीफाइड अप्रोच होती है वो कोई भी मेथड फॉलो नहीं करती, वो सीधा बोलती है कि आप ना 12 मंथ देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ लाइफ टाइम ECL देखो और लाइफ टाइम ECL के बेसिस पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को रिकॉग्नाइज करो। सिंप्लीफाइड अप्रोच ने ये भी बोला है कि जो ट्रेड रिसीवेबल जिन पे जो विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 115 आते हैं उन सब पे आप सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाओ। अगर कोई भी ट्रेड रिसीवेबल है वो भले 12 मंथ 6 मंथ्स के लिए क्यों ना हो, उस पे भी आप लाइफ टाइम ECL ही लगाओ क्योंकि उसकी लाइफ ही इतनी है। अब यहाँ पर है कि अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइसेस, जो ट्रेड रिसीवेबल कॉन्ट्रैक्ट दैट डू नॉट कंटेन अ सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, जो ट्रेड रिसीवेबल फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूड नहीं करते उन पे तो हमेशा सिंप्लीफाइड अप्रोच लगानी है, बट जो करते हैं सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इंक्लूड, उन पे आप सिंप्लीफाइड भी लगा सकते हो, जनरल भी लगा सकते हो। सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट मीन्स सपोज दो ट्रेड रिसीवेबल्स है मेरे, एक को मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा कि इफ यू विल पे मी टुडे देन यू हैव टू पे 100 रुपीज, बट इफ यू पे मी आफ्टर 6 मंथ देन यू हैव टू पे 125 रुपीज। और तो उस केस में एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट कैरी कर रहा है वो, तो उधर आप सिर्फ और सिर्फ आप दोनों अप्रोच लगा सकते हो, सिंप्लीफाइड और जनरल। लीज रिसीवेबल के केस में भी आप सेम ऐसा ही है, सिंप्लीफाइड और जनरल दोनों अप्रोच लगा सकते हो। नाउ कमिंग टू द डिस्क्लोजर पार्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्क्लोजर। आपको हर एक क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, हर टाइप के रिस्क को दो तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। एक तो क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर क्या है उसका, और एक क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर क्या है। क्वालिटेटिव डिस्क्लोजर तो ये हो गया कि एक्सपोजर टू द रिस्क एंड रिस्क कैसे अराइज हुआ, कंपनी की और एंटिटी की क्या पॉलिसीज है, ऑब्जेक्टिव्स है उस रिस्क से डील करने की, और अगर प्रीवियस ईयर से रिस्क में क्या चेंज आया। और क्वांटिटेटिव ये हो गया कि कितना अमाउंट का चेंज है, कितने अमाउंट का रिस्क है। क्रेडिट रिस्क जैसा कि हमने पहले देखा, क्रेडिट रिस्क वही है कि सामने वाली पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो उस केस में हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है। फर्स्ट, इट शैल डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड हाउ दे रिलेट टू द रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क। अनदर पॉइंट, क्रेडिट रिस्क को भी हमने दो पार्ट में करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ। एंड third point is information about an entity's credit risk exposure including significant credit risk concentration। जो भी एंटिटी की प्रैक्टिसेस है क्रेडिट रिस्क को लेके वो सब एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अब एंटिटी क्या प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है ये हमें देखना है, क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो हाउ एन एंटिटी डिटरमाइन वेदर द क्रेडिट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। एंटिटी किस बेसिस पे डिटरमाइन करती है कि क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया है। एंटिटी की पर्टिकुलरली डिफॉल्ट की डेफिनेशन क्या है। एंटिटी ने अगर ग्रुप कर रखे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को तो उनका बेसिस क्या है, एंटिटी की राइट ऑफ पॉलिसीज क्या है, और वो 12 मंथ और लाइफ टाइम ECL के असम्पशंस और एस्टिमेशन टेक्निक्स क्या है। नेक्स्ट, मार्केट रिस्क। तो मार्केट रिस्क is the risk or uncertainty arising from the possible market price movements and their impact on the future performance of the business. The major components of market risk are commodity price risk, foreign currency risk and interest rate risk. तो जो प्राइस रिस्क है वो तो प्राइस मूवमेंट के थ्रू जो भी हो रहा है वो मार्केट रिस्क के बेसिकली तीन पार्ट्स है, दैट इज प्राइस रिस्क, करेंसी रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क। तो जो भी प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो वो प्राइस रिस्क का पार्ट हो गया। अगर हमने कोई एक्सपोर्ट करी, करेंसी रिस्क हो गया कि अगर हमने कोई एक्सपोर्ट करी है वो हमने $50 में करी है, बट एट द टाइम ऑफ द पेमेंट जब सामने वाली हमें पार्टी पे कर रही है तो उस टाइम डॉलर की रेट इंक्रीज हो गई, तो उस केस में जो हमारा लॉस हुआ वो करेंसी रिस्क हो गया। इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गया कि जो इंटरेस्ट रिस्क, फॉर एग्जांपल लोन कमिटमेंट्स, तो जो लोन कमिटमेंट्स हुए, मान लो एक ट्रांजेक्शन हुआ पार्टी और पार्टी बी के बीच में, तो पार्टी बी अगर पे नहीं करती तो बैंक गारंटी दे रहा है कि वो बैंक पे करेगा उनके बिहाफ पे, या कोई थर्ड बैंक भी नहीं तो कोई थर्ड पार्टी पे करेगी। तो उस केस में अगर कोई इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस आता है और ज़्यादा पे करना पड़ता है जो मार्केट से डिफर है,
तो वो इंटरेस्ट रेट रिस्क. नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क. एन एंटिटी शुड मैनेज लिक्विडिटी रिस्क बाय मेंटेनिंग एडिक्वेट रिजर्व, बैंकिंग फैसिलिटीज एंड रिजर्व बोरिंग फैसिलिटीज बाय कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग फोरकास्ट एंड एक्चुअल कैश फ्लोज. कंपनी के जो डे टू डे बेसिस पे एक्टिविटीज होती है, तो कंपनी के कैश फ्लोज इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो अपना लिक्विडिटी रिस्क मेंटेन कर सके. नाउ अदर डिस्क्लोजर्स आर financial assets measured at FVOCI disclosure. An entity shall not present the loss allowance separately in the balance sheet as the reduction of carrying amount of the financial asset. However, an entity shall disclose the loss allowance in the notes to the financial instrument. कभी भी हम फेस पे जो रिडक्शन कैरिंग अमाउंट में जो भी रिडक्शन हुआ बैलेंस शीट के फेस पे नहीं शो करना, हमेशा नोट्स में डिस्क्लोज करना है. और अगर कोई भी कोलेट्रल हमने ले रखी है लोन अगर किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट में, तो उस कोलेट्रल का एस्टिमेशन क्या है कि हम उससे कितना रिकवर कर पाएंगे, उस कोलेट्रल के जो कोलेट्रल हमारे पास है उसकी फेयर वैल्यू क्या है, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस क्या एसोसिएटेड है, और फिर अगर आज हम उसे सेल करने जाते हैं तो हम उससे कितना रिकवर कर पाएंगे. थैंक यू.